जब शेर शांत होता है तो कुत्तों को लगता है कि जंगल उनके बाप का है. Warm regards to people around the world. My message is loud and clear. On 14th of June 2020, Sushant Singh Rajput was brutally murdered, and what followed was a huge conspiracy and a cover-up. My name is the Professor. I am here to make sure justice is delivered to Sushant Singh Rajput. Me, along with Sushant's army, will stop at nothing till justice is delivered. I urge each and every one of you to stand grounded and raise your voice against the atrocities which happened with Sushant Singh Rajput. One voice, one movement. Justice for Sushant Singh Rajput. Faith it till you make it. Hello everyone. Jai Shri Ram, Jai Hind, Jai Bharat. Warm regards and welcome to another session on Sushant Singh Rajput, his case and his legacy. Tonight we talk about one of the accused who is deeply linked when we talk about Sushant Singh Rajput murder case. Hell, he is linked with so many other cases, a person who has been given a public seat to serve the nation. Instead, he's full of corruption. सर से पैर तक करप्ट ही करप्ट आदमी निकला वो. ऐसे ऐसे इंसान को हमने उस पदवी पे बिठाया. ऐसे इंसान के ऊपर हमने भरोसा करा. लोगों ने वोट्स दिए, अपना भरोसा दिया. Yes, it's none other than the former disgraced Home Minister of the financial capital of Mumbai, Anil Deshmukh. But before we go on, it's only fair that we thank our dear host, Memia Salgaonkar, who gave me and others the opportunity to come on her platform and speak our heart out when it comes to Sushant, Disha, or any other innocent souls. So thank you from the bottom of my heart. भाइयों बहनों 14 जून 2020 जब सुशांत की डेथ हुई, मिस्टीरियस डेथ लोगों ने कहना शुरू करा. मेरे दिमाग में तो पिक्चर बहुत क्लियर है. 2.5 साल बाद हम एसएसआरियंस चिल्ला चिल्ला के सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, दैट दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर एंड वी वुड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन आईपीसी 302. और साथ में हम हमारे जो प्यारे ग्राउंड प्रोटेस्टर्स हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सुशांत हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है. एंड वी हैव आवर सॉलिड रीजंस behind it, and we have been discussing about it over and over again. Now, मैं पहले भी कहता था और आज दोबारा कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ. ये एंटायर कॉन्स्पिरेसी जो है, इसको समझना पड़ेगा. ये एक सिंगल प्लेयर की गेम नहीं है. It's not a game which is played by one individual or two individual. The entire cabal has played this game with a lot of planning, a lot of planning. जहां एक तरफ 14 जून 2020 को
पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दे दी विद इन अ फ्यू मिनट्स, एंड दैट टू when the police has not even taken the body of late Sushant Singh Rajput out of that crime room. Are you understanding? ये मैं बार बार एम्फेसिस इसलिए डालता हूं कि ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि एक तरफ अभी पुलिस उसके फ्लैट पे, सुशांत के फ्लैट पे अंदर घुसी हुई है, वो क्राइम रूम के अंदर घुसी हुई है, और दूसरी तरफ उनके स्पोक्स पर्सन मिस्टर त्रिमुखे, वो जो है पुलिस ऑफिसर, वो एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि सुशांत ने अपनी जान ले ली। आप समझ रहे हैं? ये एक, दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी played by a section. Another section, when I talk about the cabal, another section is a set of doctors who performed the postmortem in such a way that it aligns with the statement of मुंबई पुलिस। आप समझ रहे हैं? उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी ऐसे करी कि उनकी रिपोर्ट और इनकी स्टेटमेंट मैच हो जाए। हेंस भाइयों बहनों, the statement which the postmortem report which came, asphyxia due to hanging. अब आप इस, मैं आपको बिल्कुल लेमेन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इसको कहते हैं सांठ घाट। पुलिस वालों ने अपना काम करा, and when I say police वाला, I'm talking about that particular team, the investigating officer and his team, the entire force which was present there. आपको मालूम है वहां पर कम से कम 60-70 पुलिस वाले थे। I am not talking about the first day. I am talking about both the days. The total amount of police presence there. Now, isn't it strange कि इतनी तादाद में पुलिस वाले इकट्ठे हुए फिर भी that crime scene was not sealed. It was looking like a fish market. Intention बिल्कुल क्लियर था. Intention was to contaminate the place. सोचने वाली बात यह है, the same intention can be seen in Cooper Hospital. Now, on what basis am I saying this? हवा में नहीं बात करता हूं. रूप कुमार शाह जी बाहर आए और उन्होंने हमारी जितनी भी हम लोगों ने बातें करी हैं 2020 से, उसको सच साबित कर दिया. इससे पहले भी एक अटेंडेंट आए थे और उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट कही थी, और हमने ऐसे सारियां चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है, पोस्टमार्टम ठीक तरह नहीं करा गया. बट दिस टाइम अ इनसाइडर, एक ऐसा आदमी जिसने पोस्टमार्टम करा, उसने कहा कि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है, उसका उसकी बॉडी पे चोट के निशान है, उसका लिगेचर मार्क चीख चीख के कह रहा है कि ये केस मर्डर का है. ये वो आदमी है जिसने पोस्टमार्टम करा है. So, an insider coming with a statement like this clearly shows कि साठ गांठ कहां पर है. पुलिस वालों ने अपना काम करा, कूपर के डॉक्टर्स ने अपना काम करा. Hence, postmortem report was matching with the statement of the Mumbai police. अब एक पार्ट इन्होंने खेला, दूसरा पार्ट कूपर ने खेला, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट के लिए आ गए पॉलिटिशियंस एंड बॉलीवुड गैंग. ऑफ कोर्स वो पीछे क्यों रहे? why should they remain behind? Because उनका भी तो रोल है. ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी होती है भाइयों बहनों, साठ घाट में. नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई ऑलवेज टॉक विद फैक्ट्स. अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा. 14 तारीख को हम सबको न्यूज फ्लैश होती है मीडिया में. 14 जून 2020 मीडिया में न्यूज फ्लैश होती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज टेकन हिज लाइफ और कमिटेड सुसाइड, ऐसे. And the entire nation and people across the globe are in a state of shock. लेकिन वो मीडिया वाले अभी बात ही कर रहे होते हैं इस पे,
अपना शौक जाहिर कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया। एक मिनिस्टर 15 तारीख को जानबूझ के एक सेंसेशनल न्यूज़ लेके आता है और उस पॉलिटिशियन का नाम है फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। अब वो क्या स्टेटमेंट देता है, पहले हम वो सुनेंगे और उसके बाद उस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू। मीमिया, इफ यू कैन बी काइंड इनफ, प्लीज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। देखा आपने, देखा आपने, क्योंकि मुझे डीप घुसने की आदत है, मैं ये जानना चाहता हूं इन महाशय से, द ग्रेट अनिल देशमुख से, कि पहली बात तो ये, जब 15 तारीख को पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन जो भी कर रही थी, चाहे सही चाहे गलत, आपको टिप्पणी देने की क्या जरूरत थी? 60 घाट की जो मैं बात कर रहा हूं वो इसी विषय में बात कर रहा हूं। आप लोगों ने सबने सुना, स्टार्टिंग में उसने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप तक पहुंची कैसे? कैसे? पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि अभी 14 जून 2020 या उससे पहले कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जहां ये डिस्क्राइब करता है कि सुशांत के कोई डिफरेंसेस थे, बॉलीवुड से किसी की लड़ाई थी या दुश्मनी थी। ना ही मीडिया इसके ऊपर 14 जून 2020 को बात कर रहे थे। तो अनिल देशमुख 15 जून को ये स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं दैट सुशांत हैड सम डिफरेंसेस विद बॉलीवुड? सोचने वाली बात है भाइयों बहनों, जरा सोचिएगा इसके बारे में। 60 घाट इसे कहते हैं। एक तरफ पुलिस वालों ने स्टेटमेंट दी, कोलैबोरेट करा कूपर हॉस्पिटल वालों ने, और साथ में आ गए नहा धो के पॉलिटिशियंस, अनिल देशमुख जैसे। और बॉलीवुड पीछे कैसे रहता? साइमल्टेनियसली, इंस्टेड ऑफ showing shock and stating that Sushant cannot take his life, we need a proper investigation. We demand CBI in SSR death. The entire Bollywood, the entire Bollywood started expressing in such a way. Oh, Sushant, why? Why? No, Sushant, no. एक बार बात कर ली होती, ये कदम क्यों उठाया? You know, these are the kind of tweets. And one of the big stars, वो जो दीपिका है, started with the depression narrative. Some directors, some producers started writing articles on depression. भाइयों बहनों, क्या उनके पास 14 जून से पहले टाइम नहीं था क्या? आप पहले लिख लेते आर्टिकल्स। अगर आपको जनहित में जारी करना था, you could have written those articles before. बट नहीं, स्पेसिफिक टाइम देखिए आप, स्पेसिफिक टाइम। जैसे ही सुशांत की डेथ होती है, वैसे ही इन लोगों की दुकान खुल जाती है, एंड द एंटायर कबाल स्टार्टेड वर्किंग राइट फ्रॉम, मैंने आपको बताया, पुलिस, ऊपर डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड। अब सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों करा? एक केस को दबाया कैसे जाता है? ऐसे ही दबाया जाता है। पुलिस वालों ने उसका सुसाइड घोषित कर दिया,
और इन पॉलिटिशियंस गिद्धों ने और बॉलीवुड्स वालों ने एक अफवाह फैलाने की कोशिश करी। डिप्रेशन, बाइपोलर, नो डिसरिस्पेक्ट टू पीपल हु हैव बाइपोलर और डिप्रेशन, बट एक झूठी खबर फैलानी शुरू कर दी सो दैट लोगों के दिमाग में ये आ जाए और बैठ जाए, अच्छी तरह बैठ जाए, बिकॉज द एंटायर नेशन वाज शॉक्ड। ये तो जब स्टेटमेंट पुलिस वालों की बाहर आई तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपना यू नो हु शोड सम काइंड ऑफ कंसर्न कि यार अभी डेथ हुई है, अभी ये इस कंक्लूजन पे भी पहुंच गए, व्हाई देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन डन बिफोर मेकिंग दैट स्टेटमेंट। लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और उसके बाद फॉलोड बाय दोस photographs which were leaked, that video which was leaked, and then turn of events क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन डिड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। ये ट्वीट्स पे ट्वीट्स करे जा रहा है, ट्वीट्स पे ट्वीट्स, टू मेक श्योर दैट दिस केस इज बरीड अंडर द कारपेट। होम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या जरूरत है इसको करने की? ये सब ऑफ कोर्स he was part of the same cabal, and look where he stands today as a disgraced person, bringing shame to the very nation which provides him the freedom, bringing shame in front of all those who chose him to be their leader. ऐसे लोगों को हमने वो पदवी दी थी, जिम्मेदार हम हैं उसके, और कोई नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द कबाल थॉट, इन लोगों ने सोचा कि चलिए अब हमारा काम हो गया है, अब कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहानी ने एक और मोड़ ले लिया और वो मोड़ था पटना। भाइयों बहनों, कहानी ने पटना का मोड़ ले लिया। एफआईआर लॉन्च हो गई, एफआईआर लॉन्च हो गई और इनको ऐसा लगा कि भाई अब तो गड़बड़ होने वाली। एंड बेस्ड ऑन द होम रिक्वेस्ट ऑफ द होम मिनिस्टर, the Mumbai police did not cooperate with the Patna Bihar police. The way they treated, we have all seen that. धक्के मार के, वैल में चढ़ा के, क्वारंटीन करके, आईपीएस विनय तिवारी और उनकी टीम को। ऐसा होता है। This is how you treat your subordinates. If you were so right, then why? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो कुछ कर ही नहीं रही थी। 60 दिन इंक्वेस्ट के नाम पे आप लोगों ने एक तमाशा बनाया हुआ था। अगर किसी और स्टेट की पुलिस आके अपने हिसाब से अगर इंक्वायरी कर रही है, या आपका फर्ज बनता है कि आप उनके साथ तालमेल बना के रखें, शो सम प्रोफेशनलिज्म देयर। बट इरादे इरादे नहीं थे ना। दिस सेम फॉर्मर होम मिनिस्टर मिस्टर देशमुख was very afraid of things which are turning out, which have turned actually. पटना में एफआईआर हो गई, वहां पर लोगों का आक्रोश बढ़े जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। Hence, the Bihar police had no option but to come back to their state. क्या करें? कोई कॉपरेशन नहीं मिली, बहुत करी उन्होंने, डिस्गाइज, अपने आप को डिस्गाइज करके उन्होंने उन्हें इन्वेस्टिगेट करा, बट हर जगह उनको रोड ब्लॉक्स ही मिले।
They managed to take some crucial statements from people like Mahesh Shetty, and they were about to crack open the case. Do you guys know that when Vinay Tiwari, IPS, Vinay Tiwari, and his team went back to Bihar, and when they got off that plane, they did not go back home, Bhaiyo Behno. They went straight to the DGP, Gupteshwar, to submit their findings. कि सर, और गुप्तेश्वर जी ने चैनल पे आके, मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये केस जो है ये हत्या का केस है, मर्डर का केस है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक डीजीपी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है, एक पुलिस वाला चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है। ये जो शेर का एम्बलम इनकी इनको दिया जाता है, ये किसी नेता को नहीं दिया जाता, इसके पीछे रीजन है। एक पुलिस वाला अपनी वर्दी उतार के मिनिस्टर बन सकता है। क्या मिनिस्टर अपना मिनिस्टरगिरी उतार के पुलिस वाला बन सकता है? नहीं। सोचने वाली बात है। Very interesting fact is that there was no option left. The Bihar police said कि हम लोग फाइन we have almost cracked the case. But क्या करें? लाचार हैं, वापस आना पड़ा सर। The family did not give up and appealed for a CBI inquiry. अब अब डर का माहौल और बढ़ गया। डर का माहौल इतना बढ़ गया, लोगों का आक्रोश, फैमिली का अप्रोच करना, और और सीबीआई का सीधा सीधा ग्रीन लाइट देना। भाइयों बहनों, जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, दोबारा बता दूं, सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में 5 अगस्त 2020 को आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में हुआ, उन्होंने सिर्फ ग्रीन लाइट दी, और वो ग्रीन लाइट इज बेस्ड ऑन द एफआईआर व्हिच वाज डन इन पटना। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो उंगली उठाते रहते हैं, दे पॉइंट फिंगर्स। Please go and see based on what the Supreme Court gave a green light. So now, and at the same time, 5 अगस्त को सीबीआई आई थी, और 6 तारीख को श्री के सिंह जी की, जो सुशांत सिंह राजपूत के फादर हैं, उनकी स्टेटमेंट भी ले ली गई थी। तो ये काम पहले ही हो गया था, और हमें बाद में ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ग्रीन लाइट, और वो आया 19 अगस्त को। बट बैकग्राउंड में सीबीआई अपना काम शुरू कर दिया था ऑलरेडी। प्लीज, तभी मैं कहता हूं, डू नॉट बिलीव मी, डू अ लिटिल रिसर्च। गूगल बाबा है, वहां जाइए, गेट योर फैक्ट्स करेक्टेड। हेलो डोंग साहब, हेलो यादव साहब, हेलो महाराणा के भक्त जी, कैसे हैं आप लोग? गुड, गुड टू सी यू ऑल।
आई एम डूइंग ग्रेट सर. मैं बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास. As usual, after work, I came back and did some entertainment for myself and then thought कि चलो अब थोड़ा सुशांत पे बात कर लें, केस पे बात कर लें. So, अब आती है इंटरेस्टिंग कड़ी. अब डर का माहौल लिटरली मुंबई के जैसे होता है ना, सर पे तलवार लटक रही है, अब ऐसा हाल हो गया मुंबई में. इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ कि यार ये तो गड़बड़ हो गई बात. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, भाइयों बहनों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम मुंबई के उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिनको हम गर्व से देखा करते थे. उन शहीदों जिन्होंने अपना बलिदान दिया 26/11 में. हम कभी नहीं भूलेंगे, मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं. आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट. दे हैड अ नेम, द सेकंड बेस्ट. कैन यू गाइस इमेजिन? तो उनके ऊपर अब बात ये आ गई कि भाई ये तो बहुत बड़ा, अगर सीबीआई इस केस में आ गई फिर तो बच पाना मुश्किल है. Hence, different politicians started giving, the lefties, the left started giving random टिप्पणीज. अरे हमारी पुलिस तो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ईमानदारी से काम कर रही है. Even the commissioner started saying, we are doing investigation in a very professional manner. आप उनकी स्टेटमेंट सुनिए जाके. अरे भाई, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कोई बात नहीं. आपकी अगर इन्वेस्टिगेशन सच्ची है, सही है, तो लेट द सीबीआई कम एंड दिल से. बल्कि मैं तो कहता हूं और भी अच्छा है, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन आप कहते हैं कि सच्ची है तो सीबीआई भी आके उस पर मोहर लगा देगी, फिर तो 4 चांद लग जाएंगे. बट नहीं. नाउ हु हैज द पावर? द पावर remains with then present chief minister and the home minister. A home minister के directly under कौन? परमबीर सिंह. Let's listen to what this guy Anil Deshmukh says when asked कि सर सीबीआई इंक्वायरी हो जाने दीजिए. मीमिया जी, आप प्ले करेंगे? Certain narrative. सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात इसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जो है अपेरेंटली अभी उन्होंने सुसाइड कमिट किया है, ये जानकारी मिली है. आगे अभी अपेरेंट जो रीजन है जो स्पॉट पे पता चला है हैंगिंग की वजह. देखा आप लोगों ने? किसी भी हालत में, मतलब जब हालत ऐसी हो जाए कि भैया अब तो गई, अब तो लंका गई, अब तो डूबने डूबने का टाइम आ गया, किसी भी हालत में सीबीआई को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए. एंड आई एम श्योर दे मस्ट हैव ट्राइड देयर बेस्ट. बट वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है. सेम चीज when I heard for the first time in 2020, I still remember the channel Republic, and I was literally clapping. That I am sure कि आप सब लोग भी अपनी जगह से उठ के थोड़े भावुक हो गए होंगे. And you must have been very, very excited. Yes, we all did it. The family did it. और उस दिन खुशी का माहौल था. I still remember that day, Republic Day. रिपब्लिक पे, सॉरी नॉट रिपब्लिक डे, रिपब्लिक टीवी पे जब ये अनाउंस हुआ दैट सीबीआई फॉर एसएसआर, दीज पीपल वर हेल्ड बाउंड कि नहीं, कुछ भी हो जाए सीबीआई की एंट्री नहीं होगी भैया, चाहे कुछ भी हो जाए. आपने अभी सुना
Mr. Trimukhe ko giving that statement. If you go to that channel through Google Baba, you can easily access what is the time that statement has been given, और उसको देख के मैच करिए उस टाइम को जब पुलिस वाले अभी मौजूद हैं कमरे में, किसी ने बॉडी हैंग होते हुए नहीं देखी। घुसना पड़ता है डिटेल्स में कि अभी आप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सिद्धार्थ पिठानी ने बोला, आपने वो मान लिया। जो उन जोकर्स ने बोला, मुंबई पुलिस ने मान लिया। क्वेश्चन रिमेन्स, क्यों मान लिया? आपने तो बॉडी हैंग होते हुए देखी नहीं, आपने तो बेड पे देखी है। आपको तो पता ही नहीं है कि लिगेचर मार्क क्या होता है। यू आर नॉट दैट सर्टिफाइड टू टेल whether the person is dead or alive. It is the doctor. आपने ना डॉक्टर को बुलाया। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये सारे जो लोग हैं, ये सांठ घाट में काम कर रहे हैं। एवरीबडी। एंड वी आर सेइंग दिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। हम लोग कोई कहानी नहीं, नो मसाला। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। अपनी जाति जिंदगी में हम इनके दुश्मन नहीं है जो हम इनके ऊपर रॉन्ग एलिगेशंस लगा रहे हैं। वी आर टॉकिंग थिंग्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड लॉजिक। मैं तो थोड़ी छोटी चीजें होती हैं पकड़ लेता हूँ। अभी काफी इंटरव्यूज हैं लोगों की, मैं बार बार सुनता रहता हूँ बिकॉज मेरे को अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं और भी चीजें हैं जो शायद हम लोगों ने मिस कर दी है, जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार जब भी टाइम मिलता है, आई जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय दीज जोकर्स। हेलो सिमरन जी, कैसी हैं आप? जय श्री राम टू यू। बार बार सुनता रहता हूं, एंड माई रीजन फॉर दैट इज, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं ऑफ नीरज। एक छोटा, बहुत छोटा सा क्लिप। उसमें आप सिर्फ गौर करिएगा। अपने आप पहले पहले आप वीडियो देख लीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें गौर करने वाली क्या बात है। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जैसे बोलते हैं ना, बातों बातों में मुंह से निकल आया लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं। प्लीज लिसन टू दैट वेरी वेरी स्मॉल क्लिप वेरी केयरफुली। मीमिया जी, जो मैंने आप जो अगर आपका वीडियो रेडी है जो भेजा है वो अगर आप प्ले कर दें। थैंक यू। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे, पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी वॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। ये बहुत बड़े क्लिप में से, मेरे पास पूरी इंटरव्यू है इसके, एक छोटा सा पार्ट मैंने जानबूझ के निकाला है जहां ये कह रहे हैं कि ये चेस्ट दबाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जान हो जाए, लेकिन बाद में उसने क्या कहा, आपने केयरफुली सुना कि घंटा भर हो चुका था। भाई कौन सा घंटा भर? स्पेसिफिक टाइम ही सेइंग कि घंटा भर हो चुका था। किस चीज के लिए? अब मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं। अगर लॉकस्मिथ वहां पर 145 130 पहुंचा, 145 150 तक वहां रहा और दरवाजा उसके बाद खुला, लॉकस्मिथ जाने के बाद और मीतू दीदी के आने से पहले, तो ये कौन से 1 घंटे की बात कर रहा है भाइयों बहनों? सोचने वाली बात है ये।
कि घंटे भर से कैसे, घंटे भर से क्या कर रहे थे? घंटा भर हो चुका था। किस चीज़ के लिए? चेस्ट प्रेस करते-करते की तो बात नहीं कर रहा होगा। ये वो चीज़ें हैं, कभी-कभी स्टेटमेंट बाहर निकल आती है और कोई पकड़ता नहीं है। So here he's saying from his own mouth, the words coming out from his mouth. And we are just putting it across कि भाई कोई आके मुझे ये समझा दे कि ये कौन से घंटे की बात कर रहा है भाई? अब आप आगे का घंटा ले लो या पीछे का, दोनों में से कोई भी। अगर +1 आवर करके देखते हैं तब तक तो न्यूज़ भी ब्रेक हो गई थी। दैट मीन्स दीदी भी आ गई थी, पुलिस वाले भी आ गए थे और मीडिया भी आ गई थी और न्यूज़ ब्रेक हो चुकी थी। अराउंड 2:30 के आसपास की बात कर रहा हूँ। और पहले हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? Strange things happened in सुशांत सिंह राजपूत केस। हेलो दिनेश भाई, कैसे हैं? सो गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लगा भाई। स्ट्रेंज थिंग्स आपके सामने है। एक-एक इनकी स्टेटमेंट उठाइए, इन जोकर्स की, और इन स्टेटमेंट्स पे गौर फरमाइए, इनके वर्ड्स कैच करने की कोशिश करिए। इन्होंने एक कहानी रची है। मैं तो कहता हूँ एक कहानी रची है। और उस कहानी, अब सपोज़ करिए कोई आपको एक कहानी बता रहा है, "अरे! वहाँ पर मैं गया, वहाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया।" आप उसको बिलीव कर लेते हैं। हम उसे बिलीव कर लेते हैं। बट कुछ लोग होंगे जिनके पास क्वेश्चन्स होंगे उसके, कि भई ये कैसे आप कह रहे हैं, वो कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ पर वो इंसान पकड़ा जाता है। इन लोगों की कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बहुत हैं। उसमें से एक आज अभी मैंने निकाली। इन्हीं जोकर्स की एक और स्टेटमेंट ये भी है कि पठानी कहता है दैट द बॉडी सुशांत वाज़ फेसिंग द विंडो, हिज फेस वाज़ वे फेसिंग द विंडो। जब मैं अंदर गया तो बिल्कुल अंधेरा था, तो मैंने लाइट ऑन करी, तो मैंने देखा सुशांत की बॉडी फेसिंग टुवर्ड्स द विंडो। नीरज कहता है नो, द बॉडी वाज़ फेसिंग द अदर वे राउंड। कैसे हो सकता है ये? सोचने वाली बात नहीं है। कभी कह रहे हैं ठंडा पानी पिलाया सुबह 8 बजे, कभी कह रहे हैं कि जूस दिया, पोमेग्रेनेट जूस के साथ पानी, नारियल पानी। कौन पीता है भैया? मैंने मैंने क्या करा, द जिम वेयर आई गो, आई आस्क्ड माय ट्रेनर, तो एंड शी टोल्ड मी कि इट्स लाइक upsetting your stomach. Why will anybody drink that? It will upset your your stomach basically. मतलब उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन अपने तरीके से दी। मैं आपको ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ कि इट इज़ नॉट इवन मेकिंग सेंस। हाँ, अगर आप यही चीज़ पोमेग्रेनेट जूस या नारियल पानी के बीच में एक आधा घंटा या 1 घंटे का डिफरेंस रखते हैं, दैट्स परफेक्टली सेंसिबल, दैट मेक्स सेंस। बट कोई भी इंसान एक साथ ये चीज़ नहीं पीता है। और उसमें भी वेरिएशन देखिए आप, मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। नीरज कहता है उसने जूस दिया, केशव कहता है वो लेके गया जूस और साथ में केले। किसकी बात माने? सिद्धार्थ पठानी अपनी बेल स्टेटमेंट में कहता है कि जब मैं कमरे के अंदर गया तो उसके अंदर धुआं ही धुआं था। कैसे? भाइयों बहनों, आप सिगरेट या कोई भी चीज पीते हैं तो धुआं एकदम से थोड़ी देर बाद इट डिसअपीयर्स। तो कैसे रह गया अंदर वो धुआं? कौन से धुआं की बात कर रहा है? और अगर ये कहता है कि अंदर जैसे कोई सिगरेट पी रहा था, धुआं था, तो उसके बड्स कहाँ हैं? एशट्रे कहाँ है?
अब ये मत कहिएगा कि उसके पास एशट्रे नहीं थी, या आप कह रहे हो वो सिगरेट पी रहा था, तो हम कहते हैं एशट्रे कहाँ है? बड्स कहाँ है? वो गिलास कहाँ है जूस वाले? इनके पास इनके कोई आंसर नहीं है। आई एम श्योर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मस्ट हैव आस्क्ड दीस क्वेश्चंस, अगर नहीं तो पूछना चाहिए उन्हें ये सब। We have joined in this live by सिमरन जी। हेलो सिमरन जी, कैसी हैं आप? हेलो प्रोफेसर जी, सभी को और आपको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और लाइव एंजॉय कर रहे होंगे। Absolutely, absolutely. We are just here to discuss तो about मैं बात रखना Anil चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने जो मेंशन किया ना कि आपके जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा कि लाइक वो एक साथ नहीं पी सकते हैं, अदरवाइज अपसेट टमी हो जाता है। दैट्स वेरी ट्रू। एंड सेकेंडली, यू नो, अगर जिस तरह से इन्होंने जो नैरेटिव बनाए हैं, जो थ्योरी बनाई है या स्टोरी बनाई है जूस पीने की, बनाना की, वाटर की, तो उसमें और एंड देन वो कहते हैं कि भाई सुशांत ने अपनी लाइफ ली है। तो नंबर वन, यू नो, अगर 1 घंटे बाद भी या आधे घंटे बाद भी ये सब पीने के बाद, खाने के बाद, अगर सुशांत वो सब सोचते करने की, तो यू नो वो खाना बाहर आ सकता है, क्योंकि जब गला दबेगा, सांस घुटेगा, तो यू नो यू आई मीन मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पूरा टेक्निकली नहीं मेरे को पता है। अगर कोई यहाँ पे हो डॉक्टर या क्वालिफाई तो वो बता सकते हैं। दिस इज माई थिंकिंग कि उसमें तो खाना निकल, मतलब जो भी उन्होंने पिया वो निकल सकता है, नॉट खाना, लाइक पानी भी। यू नो, आपका जब गला घुटता है तो आप जो क्योंकि वो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया होगा एकदम से, तो वो निकल सकता है बाहर। तो उससे उनके Absolutely. जो भी वहां पे बेडशीट थी या उनका खुद के कपड़े हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब निकलेगा, ड्रिल होएगा, उसके मुंह से निकलेगा तो वो कपड़ों पे भी आएगा, तो उसके स्टेन्स कहाँ हैं? Absolutely, you एंड have a very good point. Yes, please go on. एंड जो इसने बोला है, जो अभी हमने वीडियो सुनी है कि घंटा भर हो गया था, राइट? सो घंटा भर तो हाफ एन आवर तो इन लोगों ने ही बोला कि हम खटखटा रहे थे, एंड देन हाफ एन आवर और 10-15 मिनट्स लगा हुआ, अकॉर्डिंग टू देम, जो इन्होंने थियरी बनाई है कि इन्होंने की मेकर को बुलाया था, तो उसको आने में और काम करने में another half an hour to 45 minutes गए होंगे, and then they waited for another 5 minutes कि वो मतलब वो हुआ, मतलब वो जाएगा, उसको पैसे दिए, फिर वो वापस आएगा, फिर वो एक एक करके गए। लाइक इन वन ऑफ द वीडियो दे से पहले पिठानी गया, फिर नीरज गया, फिर धीरज गया, फिर मीरज गया, जो भी हैं, जितने भी लोग थे वहां पे, वो लोग सब गए हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक सो, मतलब ये एक आवर मैं लेके चल रही हूँ, आवर एंड हाफ और समथिंग ऐसे लेके चल रही हूँ। तो ये चीजें तो अगर सुशांत ने किया होगा, राइट, अगर सुशांत ने ऐसा कुछ स्टेप लिया होगा तो वो तो बहुत पहले लिया होगा ना, क्योंकि कौन सा टाइम, व्हाट टाइम, जस्ट रिमाइंड मी प्रोफेसर जी, कि जब ये नीरज कहता है कि मैं जब सफाई कर रहा था, या जो भी है कह रहा था कि मैं सफाई कर रहा था, सुशांत केम आउट, ही गेव मी स्माइल एंड देन ही आस्क्ड कि कैसा चल रहा है, और यू नो लिविंग रूम को साफ किया कि नहीं किया, ऐसा कुछ पूछता है। तो वो कितने बजे का टाइम वो बोल रहा था? इफ आई एम नॉट, आई थिंक इट्स अराउंड 8ish, 8, half 8ish. Yes, Am I yes. right? 8, Yeah. 8 in the morning. हाँ, एंड देन उसके आई थिंक 5-10 मिनट्स बाद उसने मांगे हैं ये सब चीजें, लाइक वाटर,
pineapple juice, नहीं pomegranate, and mango juice, and no no whatever. no Hmm. no uh, अच्छा. 8ish के around he Neeraj gives a statement that Sushant came out of his room and Hmm. I was cleaning the stairs and when he smiled at me and said सब काम बढ़िया चल रहा है and he said asked for a cold glass of water. Later Hmm. around 9:30 Keshav went to Sushant's room to ask for breakfast कि breakfast में क्या खाएंगे. Sushant was sitting on his bed and he asked for as per the statement given by this joker Yeah. that Sushant said कि मेरे को pomegranate juice और नारियल पानी दे दो और साथ में वो केले Okay. लेके चलो तो केशव went there. So this happened at 9:30 around 10 a.m. The sister called because sister was trying to get in touch with Sushant and Mm-hmm. he was not able to get in touch. So sister Yeah. called the first time around 10ish Mm-hmm. uh, to Siddharth Patani, to which Siddharth Patani goes and finds that uh, you know he gives a statement that सुशांत का दरवाजा बंद था जो कि मेरे को बेबुनियाद लगता है तो Yeah. if I go by his statement initially the first time when the sister called and Yeah. asked for Sushant that Yeah. was somewhere around 10ish उसके Okay. बाद से अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं और सब कुछ देखूं और लॉक स्मिथ का भी देखूं सब कुछ तो समवेयर अराउंड 3.5 घंटे तक ये लोग दरवाजा खटका नॉक Yeah. करे जा रहे थे ठीक है हाँ. which is हाँ. not even which does not Make make any any sense. sense Yeah. राइट Yeah. और ये जो नीरज का स्टेटमेंट है Hmm. कि 1 घंटा हो गया था जो भी मैंने हाँ. अभी सुनाया है तो ये Hmm. जान के मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन से 1 घंटे की बात कर रहा है कि भाई 1 घंटा हो चुका था किस चीज के लिए Yeah. किस चीज के लिए 1 घंटा हो गया था ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बॉडी वो प्रेस करने की बात कर रहा है कि भाई हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है 1 घंटा हो गया बिकॉज हाँ. उससे पहले लॉकस्मिथ के जाने के तुरंत बाद तो मीतू दीदी आ गई थी उसके बाद पुलिस वाले और मीडिया आ गई थी और हाँ. न्यूज ब्रेक हो गई थी तो दैट मीन्स इसके मुंह से निकल गया है कुछ ना कुछ इसके मुंह से निकला है विच द सीबीआई हैज टू फाइंड कि ये कौन से 1 घंटे की बात कर रहा है Yeah. Yeah. Is that the 8 ghanta when they brought him home after what they did to him after the torture, or 8 ghanta like when they left? अगर ये सब torture घर में हुआ है तो उस घंटे की बात करें एंड टू बी रियली ऑनेस्ट प्रोफेसर आई डोंट थिंक सो दे हैव डन ऑल दोज रबिश जो वो बोल रहा है कि हमने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी और उसका हार्ट को प्रेस किया ये करा वो करा सीपीआर आई डोंट नो अबाउट सीपीआर उन्होंने दिया कि देने की कोशिश करी कि नहीं करी बट ऑल दीज थिंग्स व्हिच दे सेड आई रियली डोंट नो क्योंकि कुछ नहीं लग रहा था लाइक वी सॉ दैट वीडियो जो आपने प्ले किया था जब नीरज या धीर जो भी है ये फर्श को बाहर लेके जा रहा था उसके फेस से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ही इज अपसेट राइट आप अगर किसी के घर में पेट है अगर आपका पेट की डेथ होती है आप कई दिन तक मिस करते हैं आप बहुत अपसेट होते हैं आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है यू फील सो सैड वो तो एक इंसान है और उनके साथ तुम रहे हो कितने महीने कितने साल जिस बंदे ने पाला है तुम्हें ही वॉज एक्चुअली फीडिंग हिम और उसको घर दे रखा था फ्री का कोई रेंट थोड़ा ना लेते होंगे सुशांत उनसे जितने लोग वहां रह रहे थे वो तो फ्री में रह रहे थे और प्लस उनको पे भी मिल रही होगी साथ में तुम्हें फ्री में रहने को मिल रहा है तुम्हें अच्छा खासा खाने पीने को मिल रहा है तुम्हें रहने को मिल रहा है तुम्हें एक भाई की तरह वो रख रहा है इससे ज्यादा कौन करता है और तुम उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग नहीं है कुछ दिख ही नहीं रहा था उनके फेस से कि कुछ
उनको जरा सा भी दुख हो रहा है या उन्हें जरा सा भी अफसोस हुआ है कि क्या हुआ है, अगर चलो ठीक है, एक बार को हम मानते हैं, अगर हम उनकी थियरी को लेके चलते हैं कि भाई सुशांत ने अपनी जान ली है, चलो उनके कहने पे जो वो बोले जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, या डिप्रेशन का भी जो इन्होंने स्टूपिड सी थियरी फैलाई थी, उसको भी लेके अगर हम लोग चलते हैं, फिर भी एक इंसान मतलब के जाने पर आपको दुख होता है। अगर आप कोई कोई पड़ोस में भी चला जाए तो उसका भी आपको दुख होता है, अगर आपके अच्छे उसके साथ रिलेशन है। तो ये सब चीजें जो है सीबीआई को, ये जो वीडियोस हैं, आई होप कि ये देखें, और एंड आई एम श्योर जो सीबीआई है, ये बॉडी लैंग्वेज तो इनको काफी मतलब इनको सिखाए, इनको ट्रेनिंग दी जाती होगी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी, क्योंकि वहीं से तो ये लोग सच और झूठ का पकड़ते हैं। तो ये सब वीडियोस भी देखने चाहिए, और उनके जो वीडियोस में जो ऑफ कोर्स हमें फेस पूरा नहीं दिख रहा है बिकॉज मास्क पहने हुए हैं, सो आई एक्सप्रेशन दे कैन सी, बॉडी लैंग्वेज जो उनके जिस तरह से मूवमेंट है या जो भी है, वो सब देख करके उन्हें लग जाना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो वी कैन ओनली होप कि ये सब उन्होंने किया हो, वी कैन ओनली होप कि कुछ मिस नहीं किया, अगर मिस किया तो किसी तरह मैं लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड शिवा से कहूंगी कि उनके मतलब कुछ कोई भी ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो पे आ जाए, या किसी भी वीडियो में, काफी लोगों ने बात करी है इस बारे में, और कहीं पे भी ये देखें और उस बात को दोबारा से वीडियोस देखें, दोबारा से हमारी बातें सुने, दोबारा से उन सब चीजों को एनालाइज करें और सही सही वो लेकर आए अपडेट्स। You know what I want to say, प्रोफेसर जी, like एक अगर कभी दे आर ह्यूमन एज वेल, राइट, वो कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है, दे आर ट्रेन एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कभी कभी इंसानों से गलती हो जाती है या मिस हो जाती हैं चीजें। तो अगर कोई चीज मिस हुई है तो हम लोग जो यहाँ पे, जैसे आप इतना अच्छे से समझाते हैं, तो आपकी वीडियोस देखें और एक बार सोचें कि हाँ चलो एक बार दोबारा से देखते हैं कि एसएसआर ने इस बारे में बात करी है, लेट्स वॉच इट अगेन, लेट्स सी कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। तो उससे काफी उनको हेल्प मिलेगी। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई आप एवरी वीक बात करते हैं रिपीटेडली, जो भी, ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें किसी को पता नहीं है, सबको पता है, लेकिन एक रिवाइंड जब आप करते हैं चीजों को, तो अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ मिस कर गए, या मैं तो खैर अपने आप को नहीं उसमें गिनती हूँ कि मुझे बहुत नॉलेज है, तो एटलीस्ट यहाँ नीचे व्यूवर्स में जो बैठे होंगे तो वो आपको बोल सकते हैं या बता सकते हैं, प्रोफेसर जी क्या आपने ये देखा, या प्रोफेसर जी क्या आपने ये बात आपको पता है इस बारे, तो समथिंग न्यू वी विल फाइंड आउट। Am I right? Yes, yes, absolutely. तो वही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि आई होप कि सीबीआई भी उस चीज को एक बार देखें और फाइंड आउट करें अगर कुछ मिसिंग हो रही है तो, क्योंकि आप जिस तरह से समझाते हैं ना प्रोफेसर, और कोई नहीं समझाता है। आई मीन आई हैवंट सीन एनीवन, सब लोग बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई लोग कुछ अच्छे काम नहीं करें, दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन एक तरीका होता है समझाने का, बात करने का, एक चीजें वो करने का, वो चीज तो खैर एक प्रोफेसर को ही आएगा। सो आई वुड शट माय माउथ एंड यू कैन कंटिन्यू। All right. That was very well portrayed and put across. Every point of view is welcome, and there's nobody to judge you. And I was just going through the comments, and एक comments लेते हैं मिस्टर वरुण के, डालिए स्क्रीन पे फर्स्ट कमेंट। हेलो वरुण, हाउ आर यू? आई होप you are doing good, well. And just wanted to remind you, since you joined late, in the start of the live, I always appreciate the host. The host, Mr. Varun, is a very young girl who, by birth,
कैनॉट स्पीक, स्पीचलेस हैं वो। और आप उनकी हिम्मत देखिए। स्टिल शी इज कनेक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट and the ample amount of knowledge that little girl has within her. And one day she told me, Bhaiya, I want to, uh, do something more. And she makes these small videos. अगर मिस्टर वरुण आप इनके चैनल पे जाएंगे, इनका ही चैनल है। हमें आई एम वेरी थैंकफुल टू मीमिया सलगावकर that she gives us this platform to speak our heart out. तो क्योंकि वो बोल नहीं सकती हैं, वो सिर्फ वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकती हैं अपनी फीलिंग। और ऐसे थोड़ा वीडियोस बना सकते हैं। उन्होंने अपने सुशांत के लिए वीडियोस बनाए हैं। सो लेट्स अप्रिशिएट द गुड दैट दैट लिटिल गर्ल इज डूइंग। And also it this is not a channel where we want any kind of publicity. It's like even Varun ji, agar ek viewer bhi hoga na aur dekh raha hoga and I am interacting with that person, I am here to express my feelings, my point of view. So even if there is one viewer, I am happy with it. I am absolutely happy. और मेरा कहने का मतलब है आप भी यहीं पर हैं वरुण जी। और अगर आपको मेरी बात सही नहीं लग रही, या टॉपिक या लॉजिक या फैक्ट्स जिस पे मैं बात करता हूं, तो आप आई एम श्योर कि इस चैनल से कहीं और चले जाते और किसी और को सुनना पसंद करते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आई वुड नॉट आई एम नॉट लाइक अदर्स हु विल give it back in a awkward way, on a disrespectful way. But मेरा कहने का मतलब ये है, let's appreciate everybody whosoever is doing whatever contribution. It's not about 5 people are watching. It's about, wow, at least we 5 are together and we are discussing Sushant Singh Rajput case. It is that simple. It doesn't matter कितने viewers हैं। मैं अगर 1000 भी हों, 2000, 10,000 भी होंगे, वो भी वही सुन रहे होंगे। So the intention is that we come here, we talk about Sushant Singh Rajput, and let's appreciate and thank our host Mimia Salgaonkar, who gave us this platform. It is that simple. So I always welcome. आप अगर लाइव पे भी आना चाहते हैं वरुण, you are most welcome to give your opinion. Come and talk about Sushant Singh Rajput case or his legacy or any other point you would like to discuss. Disha Salian, koi bhi, so you are most welcome. So we must always appreciate one another. That's how life is all about. तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था। और जैसे सिमरन जी ने कहा, nothing adds up. Of course, there is nothing which adds up when we talk about सुशांत सिंह राजपूत केस, बिकॉज ये लोग कह रहे हैं कि हम 3 घंटे से कौन दरवाजा खटकाता है, कौन? आप जरा सोचिए थोड़ा, अपने आप को 14 तारीख को उस कमरे के बाहर लेके जाइए। अगर चाबी नहीं थी, चाबी आप ढूंढ रहे थे, तो आपने लैंडलॉर्ड को क्यों नहीं फोन करा? आप रेंटेड अकोमोडेशन में है, आपने गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? सबसे पहले आपको गार्ड को पूछना चाहिए, फिर आपको लैंडलॉर्ड को फोन करना चाहिए, फिर आपको रिया चक्रवर्ती को फोन करना चाहिए। अब आधे लोगों को यही नहीं मालूम। आधे लोग सोच रहे हैं कि वहां पर 4 लोग थे। देखिए, वहां पर सुबह के टाइम 3 लोग थे, सैमुअल मिरांडा बाद में आया। सो these are small details which people have to know. These are very small details that people have to know. So of course we have seen the video. We know कि जब पुलिस का इन्वेस्टिगेट कर रही थी, कमरे के अंदर थी, तो बाहर जो खड़ा शख्स पीछे था, सैमुअल मिरांडा था, of course, but he came later on. These things people have to just do a little digging and you'll come to know. But my point is कि यार 3 घंटे से कौन खड़काता है और साथ-साथ में कह रहा है कि वो दरवाजा नहीं। 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप नॉक करोगे, उसके बाद किसी को भी ऐसा लगेगा कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है, और आप टांग तोड़ के दरवाजा खोल देते।
बट इन लोगों ने ऐसा नहीं करा, बिकॉज मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, इंटेंशन ही वही थी। चाबियां सारी गुम गई, मास्टर की भी और डुप्लीकेट की भी। लॉक स्मिथ को बुलाया जानबूझ के है गाइस। अब काफी लोग आते हैं, काफी लोग कहते हैं कि लॉक स्मिथ नहीं आया जी, हम नहीं मानते लॉक स्मिथ। अरे भाई, ये वो इंसान है जिसने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है अथॉरिटीज को। आप माने या ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही हैज गिवन अ स्टेटमेंट टू द लॉ ऑफ द लैंड। तो आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा, किसी के भी। हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। तो बट ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉक स्मिथ को वहां क्यों बुलाया गया। लॉक स्मिथ ने जब वो दरवाजा का ताला तोड़ दिया तो उसको अंदर क्यों नहीं घुसने दिया, ये सवाल होने चाहिए। अंदर इसलिए नहीं घुस बुलाया, इसलिए बिकॉज दे वांटेड एन एलिबाई, दे वांटेड टू प्लेस अ पर्सन जो स्टेटमेंट दे। अंदर इसलिए नहीं घुसने दिया बिकॉज सुशांत की बॉडी कभी हैंग कर ही नहीं रही थी। उसकी डेथ ऑलरेडी कर चुके थे, ये मर्डर कर चुके थे, मार चुके थे उसको। इसलिए उस लॉकस्मिथ को अंदर घुसने नहीं दिया और कहा कि अपना सामान लो और जाओ। और उसके बाद जब दीपेश कंफर्म्ड कि वो चला गया है, दीपेश ने उसको 2000 रुपए दे दिए। उसके बाद वो अंदर कमरे में गए। ये वही लोग हैं जो 3 घंटे से दरवाजा पीट रहे हैं और दरवाजा खुलने के बाद ये अंदर नहीं जाते, वेट करते हैं लॉकस्मिथ की कि लॉकस्मिथ चला जाए, उसके बाद हम घुसेंगे। कहानी देखिए तो सही आप, समझिए तो सही क्या है। मैं बार-बार मैं स्पेसेस पे भी बोलता हूँ, ठीक है? लोग अपने कमेंट्स लेके आ जाते हैं, अपनी टिप्पणियाँ लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लॉकस्मिथ नहीं आया था। अरे समझने की कोशिश करिए। देखिए उसकी स्टेटमेंट क्या है लॉकस्मिथ की। इन फेवर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत ही बोल रहा है वो। अथॉरिटीज़ ने जब कोई स्टेटमेंट जारी करता है, कोई कोई कहता है, स्टेटमेंट देता है, तो अथॉरिटीज़ जो होती हैं, ये जो एजेंसियाँ होती हैं, ये एकदम से बिलीव नहीं कर लेती। ये अपना इन्वेस्टिगेशन करती हैं कि भई सामने वाली पार्टी सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। लॉक स्मिथ ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कितने बजे उसको कॉल आया, 1:05 पे। तस्वीरें कहता है मेरे को गलत तस्वीर भेज दी। एक-एक डिटेल बता रहा है। बोल रहा है कि उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी है। अब अगर उसकी बात गलत निकलेगी तो सबसे पहले कौन जाएगा अंदर? लॉक स्मिथ ही जाएगा। रफीक और उसका भाई जो कि वहां गए थे। सो these are things which we need to understand. These are things which really matter. एजेंसीज ने जियो लोकेशन देखी होगी, व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करे होंगे, एवरीथिंग। सो आई अपील विद बोथ माय फोल्डेड हैंड्स यार, उन लोगों से कि थोड़ा सा थोड़ा सा सेंस डाल के देखिए इस पे। When the person's statement is already recorded, then the argument should be कि भाई इसने रिकॉर्ड कर लिया है स्टेटमेंट, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूएबल विटनेसेस। गाइस, ये विटनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस है, मैं तो कहता हूँ। और लोग कहते हैं वो गया नहीं होगा। ऑन दैट नोट, आई वुड लाइक टू वेलकम एडवोकेट सोनिया रैना जी। सोनिया रैना जी, कैसी हैं आप? हेलो। थैंक यू प्रोफेसर। जय हिंद, जय भारत टू ऑल ऑफ यू। जय श्री आप राम। डिस्कस कर रहे थे तो मेरे को लगा आपके डिस्कशन में एक आध दो पॉइंट ऐड करेंगे। आई एम सॉरी, आई एम ईटिंग माय डिनर, अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट आपने अभी एक बात बोला कि लोग बोलते हैं लॉक स्मिथ नहीं आया था। अगर लॉक स्मिथ नहीं आया होता, उस एक तो आपने जो पॉइंट बोला कि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, दूसरा पॉइंट ये है जो 3 लोग जो वहां पे खड़े थे उनका स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने भी लिया है। मुंबई पुलिस ने जब जो स्टेटमेंट लिया था उसमें भी डिफरेंसेस थे, हर किसी ने अलग स्टोरी सुनाई थी। एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे वर कॉल्ड बाय द सीबीआई, इन लोगों को एक बार नहीं 3-3 4-4 बार बुलाया, बिकॉज इनकी स्टोरीज का पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा था। और ये जो 3 लोग हैं ये बोलते हैं कि सुबह उन्होंने जूस पिया, लेकिन हमारी वेस्टरा रिपोर्ट में तो दिखा रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं फूड इनटेक इन द बॉडी।
हम लोग पूछते रह गए कि डॉग कौन था। अभी मैंने कहीं पे सुना था कि डॉग इस बिल्डिंग में अलाउड नहीं है। नहीं, बिल्कुल अलाउड है। आई थिंक उसके नीचे वाले फ्लोर में भी जो लोग रहते हैं उनके पास भी डॉग है। सो इट्स नॉट दैट डॉग वाज नॉट अलाउड, बट ही वाज नॉट देयर। Was he out with Samuel Miranda? Because Samuel Miranda was not there. Or Yes, yes. you remember he was not Yeah, there. yeah. Very good point. मैं इस पे आता हूँ, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए. और मेरा एक और पॉइंट है, इनमें से कुछ लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि सुशांत ने सारे सिगरेट्स पी लिए. There were good number of cigarettes in the room and he smoked all of them. मुझे उससे पहले उनसे ये क्वेश्चन है, हमको ये पूछना चाहिए कि आपको पता है एक बंदा डिप्रेस्ड है अकॉर्डिंग टू यू, एक बंदा ड्रग्स पे है अकॉर्डिंग टू यू, और वो सुबह से दरवाजा नहीं खोलता है और आप ये बोलते हैं कि अरे सो रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, दैट्स व्हाई इज नॉट ओपनिंग द डोर. डजंट इट रिंग अ बेल इन योर माइंड? हाउ कैन दैट बी इवन लॉजिकल? अगर आपको पता है somebody is depressed and he can do some harm to himself, then why will you leave him alone for this long period of time? सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जो ये बार बार बोलते हैं कि सुशांत की बॉडी हैंग नहीं थी, कपड़ा काटा गया था, बट आप देखिए उसमें भी अलग अलग ओपिनियंस हैं. जो एम्बुलेंस वाला है लड़का, वो बोलता है मैंने काटा है. मुंबई पुलिस ने बहुत बार बोला हमने काटा है. पिठानी बोलता है हमने काटा है. तो बॉडी को उतारा किसने और देखा किसने, इसका कोई आइडिया नहीं है. Then there was a statement made by Pithani himself saying that he called family, but family in some interview denied it completely, where he has mentioned that I think the elder sister's husband told to get the body down, but they are saying they haven't spoken to him. So whom did he speak to actually? Why didn't he call the ambulance immediately? Why was ambulance not called immediately? That is another question. Or Professor, सबसे important part, during that period when Patani is there, he's one of the person who's present at the crime scene. He has an injury on head. How did it occur? So please carry on. Absolutely valid and sensible points, bhaiyo behno, sensible points. I mean, these are things which always bring a smile on my face. क्योंकि अच्छा, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहला पॉइंट बहुत अच्छी पॉइंट है कि भाई द डॉग्स आर अलाउड देयर. वी हैव सीन दैट 14 जून को नीरज माउंट ब्लैंक से फज को बाहर लेके आ रहा है. आई थिंक yesterday or day before yesterday's live we were discussing on that Fudge and even that Siddharth Patani. But the important point is that if Fudge was not there on the 13th night, it is highly possible that Samuel Miranda must have taken Fudge for just that one night and brought him back on 14th morning. Possibility है sir. भाइयों बहनों, दिस इज एब्सोल्यूट पॉसिबिलिटी. अदरवाइज ये जो डॉग्स होते हैं इनको सिक्स सेंस होती है. लोग काफी इसके बारे में स्पेसिस पे हमने चर्चा करी है. काफी लोगों ने कहा कि हो सकता है किसी और कमरे में हो सकता है उसको बेहोश कर दिया हो. बट दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट ये भी पॉसिबिलिटी है दैट सैमुअल मिरांडा मस्ट हैव टेकन दैट डॉग फॉर दैट वन पर्टिकुलर नाइट. Now the question is very valid when Simran ji initially said, and now Sonia ji also said the same thing कि भाई टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में क्यों नहीं आया ये सब कि भाई उसने कुछ खाया है या पिया है. और ऐसा कैसे हो सकता है कि कि किसी इंसान ने 24 घंटे में कुछ खाया ही ना हो. Guys, please remember that Sushant Singh Rajput was off grid from 13th आफ्टरनून. 2:40 को उनको कोई कॉल आया था अकॉर्डिंग टू उदय सिंह गौरी एंड मिस्टर तोरानी डायरेक्टर, जो उन्होंने बात करी आधा पौना घंटा. हम 3 बजे लेके चलते. 3 PM आफ्टर दैट ही इज ऑफ ग्रिड एंड दे से नीरज सेज दैट शाम को उन्होंने मैंगो शेक मांगा था तो मैं मार्केट गया. कोविड टाइम में उसको आम भी मिल गए. कहां से मिल गए वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो पोस्टमार्टम में देयर इज नथिंग एट ऑल, as if the man did not eat or drink anything for the past 24 hours. Is it possible?
I mean, strange things, right? And Sushant was a foodie. He loves food. और सोनिया जी हेलो, और आपने ना मेरे को दोबारा से भूख लगा दी है. Absolutely. And not to miss, I really want to understand that how does a person get hurt on the middle of the head? अरे भाई, हमें कितनी बार चोट लगती रहती है यार. You know, you cycling, you fell off. You climbing down from stairs, you fell. बॉडी पे लगती है, कभी मुंह के बल गिरते हैं, कभी दरवाजा लग जाता है, कुछ भी हो जाता है. while swimming you you know you have an accident, but सर के बीच में कब लगती है? Obviously it's या तो बहुत कोई एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी ने सर पे मारा हो, एंड दैट टू ड्यूरिंग दैट टाइम. भाइयों बहनों, इससे पहले नहीं, द सेम 13th and 14th, 13th night and 14th, we can show you the picture again if Mimia can be kind enough. बेटा, आप अगर वो पिक्चर दिखा सकते हो. प्रोफेसर, And जब why? तक मीमिया जी पिक्चर दिखाती हैं तब तक मैं एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी. हम जो कीज की बात करते हैं, वो कीज तो लैंडलॉर्ड को भी नहीं मिली, पुलिस को भी नहीं मिली, सीबीआई को भी नहीं मिली, तो की गई कहाँ? Where is the key? Because landlord in his statement on the television has said it very clearly. He didn't get the other key when the flat was given back to him. Only one key. So who took the key? Did Ria took the key with him? Quite possible. मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ. मैं तो कह तो रहा हूँ कि मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो दरवाजा बंद था. वो दरवाजा बंद करा गया और चाबियां गायब करी गई. अब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि भैया, अब ये दरवाजा बंद है, तो वो कहेंगे कि भाई चाबी और वो सब क्या है. they purposely did not want any kind of intervention, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, कि भाई इस केस में कोई ढीला लिंक ना रह जाए. तो एक एलिबाई, एक विटनेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा in the form of the locksmith, which, ladies and gentlemen, has given statement. Already दे चुका है वो statement कि मैं अपने भाई के साथ वहां गया था. And based on that statement, which I will say 100% agree with, based on that statement, I go through my timeline. I make a rough timeline. 145, 150 तक वो वहां था. उसके बाद वो वहां से निकला है और क्या कहते हैं, मीतू जी वहां पर आए, उसके बाद पुलिस आई और उसके बाद मीडिया आई. And as Sonia ji rightly said, dogs were allowed there. We have all seen that. तो मतलब ये जो फॉल्स नैरेटिव 2020 में नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसने फैलाया था वो गलत है. और फैलाया, आई डोंट नो ये चीज क्यों फैलाई गई थी, दैट डॉग्स वर नॉट अलाउड. इट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. There वेरी is a video इंटरेस्टिंग as पॉइंट. well. एक और मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सिमरन जी को सुन लेते हैं. सिमरन जी, आप मैं ये कह रही थी, if you guys remember, there's a video as well where he's playing with Hutch, जो टेनिस टेबल के पास है. He was playing with him. If he wasn't allowed, or dogs or pets are not allowed, then what he was doing there? can you repeat again? Okay, so there is a video where Sushant is playing with Fudge, जो मिमिया ने भी अपने वीडियो में डाला है. When हाँ हाँ, of course. do you remember? Yes, of course. He's playing with fudge. वो टेबल टेनिस का जो टेबल Yeah, है, उसके yeah, पास वो फज घूम रहा है, सब कुछ. yeah. और ये फॉर ऑल दोस पीपल, कुछ लोग मेरे पास वो वीडियो लेके आए और बोले कि वो केप्रीज का हाइट का है, ये है. मैंने कहा यार नहीं है वो No, no, केप्रीज no. का नहीं है, वो माउंट ब्लैंक का है, बिकॉज यू कैन सी द सी. Yeah. एंड
सी फेसिंग उसका अपार्टमेंट था और उस विंडो से साफ नजर आ रहा है एंड ही इज प्लेइंग विद फज. सो वो थ्योरी वहीं पर खत्म हो जाती है. बट मेरा सवाल ये है कि ये फॉल्स नरेटिव 2020 में जो इंसान लेके आया, क्यों लेके आया? टू क्रिएट अ डाउट इन पीपल्स माइंड. व्हाई? व्हाई? Why would anybody do that? Why would anybody say, locksmith नहीं आया? अरे भाई, अरे सीबीआई, डीआरडीओ, हर जगह जाके लोगों ने स्टेटमेंट दी है. सीबीआई ने इन जोकर्स को 3-3 बार, 4-4 बार बुलाया है. ये देखिए, this is the photograph. On the left hand side, you can see the video of Neeraj taking out Fudge for a walk on the same day. Guys, on the same day, on the 14th June 2020, somewhere after the body was taken to Cooper Hospital. On the right, you can see the same buffoon. उसके सर पे ये देखिए टांड है इसकी और बैंडेज उसने बांधी हुई है. तो ये इसको चोट कैसे लगी? So these are questions which need immediate attention. Professor, I also have a question for you, जिसका Yeah, जवाब मुझे नहीं मिला कभी भी. लोग कहते हैं कि dogs were not allowed there. मैंने ये तब भी पूछा था, but as usual, I never got an answer. अगर सुशांत के पास फज पहले से था, तो why will Sushant move to an accommodation where dogs are not allowed? absolutely right. Absolutely right. Yeah. मतलब you see, this is what I call that getting some sense on the table. What I mean, he used to. You've seen multiple videos of Fudge, and he was so close to Fudge. Why would he choose a place where dogs are not allowed? Bang on here. Exactly. And also, one thing I would just quickly like to put, dogs can sense. अगर उसको दूसरे रूम में भी रखेंगे, even though उसको 10 miles, मतलब not 10 miles, but like 1 mile पे भी उसको अगर रखेंगे ना, तो he still, the dogs can still smell their owners. तो ये इंसिडेंट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ. व्हेन आई टुक फर्स्ट टाइम फॉर ग्रूमिंग व्हेन ही वाज अ बेबी, लाइक he was about like 4 months old, and तो मैं हाइट करके खड़ी हो गई थी क्योंकि आई वांटेड टू सी कि किस तरह से वो लोग ग्रूमिंग करते हैं, ठीक से करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको हर्ट ना करें करके. he could smell me and he was like कि and like he was looking where I was standing. He knew मैं इतना हाइट होके खड़ी हुई थी और बहुत दूर खड़ी हुई थी. उसको फिर भी पता था कि मैं आसपास हूँ. and he was so difficult to handle कि one of the lady came out and she said to me that you have to leave the place immediately, otherwise वो जिस तरह से एक्ट कर रहा है, जंप कर रहा है या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो उससे उसको हर्ट हो सकता है. सो आई हैव टू लिटरली लीव दैट प्लेस. वो एरिया छोड़ करके फिर मैं घर ही आ गई वापस. मैंने कहा ओके, आप जो भी होगा मैं I'll see that time. तो दे कैन स्मेल द ओनर. और सुशांत के साथ तो वैसे भी उनका जो बॉन्डिंग है वो हम लोगों ने देखा है. तो ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है कि उसको किसी रूम में रख दिया होगा. यस, बेहोश अगर कर दिया होगा तो कितनी देर तक करेंगे बेहोश उसको, तो वो उसको कंप्लीटली बाहर ले गए होंगे. जैसे प्रोफेसर जी आप कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल आउट ऑफ बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर ले गए होंगे कहीं और. एंड तब इन लोगों ने ये टॉर्चरिंग शुरू करा या जो कुछ भी करा है उन्होंने हमारे सुशांत के साथ. So that's all I wanted to say. Professor, one more thing. If you guys Yeah. remember this, in one interview, that Ankita, the girlfriend of Sushant, previous girlfriend of Sushant Singh Rajput, she said that he gifted me the dog, and when they broke up, he took the dog with him. So it was Fudge, right? So it is not possible that he moved into accommodation and a dog was not allowed. Your second point, a lot of you are talking about dogs smelling sense and all that. But even if we lock him in a room, he'll scratch on the door. There are no scratches or nothing found by the police, neither by the CBI. That is not possible. So that means he was not in the house. It's common logics we are applying because we don't know the facts, but common logic. There are no scratches, nothing on the door.
At least he would have tried. If Sushant was shouting or Sushant was crying, if they were torturing him, there would have been some action by Fudge. But nobody has talked about it ever. Uh, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, लॉयर का दिमाग तो ये चीज इट्स मेकिंग सेंस दैट अगर किसी कमरे में बंद कर दिया होता तो द डॉग वुड हैव स्क्रैच्ड दैट डोर, हेंस देयर वुड बी मार्क्स। एब्सोल्युटली, ये तो कभी आई डोंट थिंक दिस पॉइंट हैज एवर कम एनीवेयर। तो और स्टार्टिंग में आई स्टिल रिमेम्बर 2020 में पीपल वर टॉकिंग अबाउट, अरे वो स्ट्रेचर में देखिए सुशांत के चादर के नीचे जो है वो फर्जी है। एवरीबॉडी एंड सब बोल रहे थे अरे भाई वो पटना में है, फर्ज को पटना ले गए हैं, एंड देन इट वाज टेकन टू फरीदाबाद। लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ speculated lot of things, assuming lot of things, nahi fudge is no more and he is also being murdered and everything। तो काफी काफी कुछ हुआ है इस मूवमेंट में। पीपल स्पेकुलेटेड नाउ deliberately or you know I don't know, I cannot say, but things are now crystal clear and right in front of you that on 14th Fudge was present there. Professor, one more. Let's just Uh-huh. go to the quick questions. See, we are Okay. always talking about his prescriptions, everything, but there was one prescription which was given by Chudail Chakravarti's father when he had dengue. What was the need of Chudail Chakravarti to take that prescription when she left the house? What was the need? And it is again not a theory. One of the friend of Sushant Singh Rajput had given that statement. It is on many channels. You all can look for it. What was the need, and why was the need to hide that prescription? Absolutely. So, like I always said, Sonia ji, मैंने शुरू से ही बोले जा रहा हूँ, the intention of Riya has always been that to create that atmosphere of depression around. You know, even if Sushant had, and मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता because everybody has anxiety in their lives. कभी ना कभी किसी ना किसी को होती है। सुशांत को अगर छोटा-सा सैडनेस या एंग्जायटी कभी होती भी होगी, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कर्सी चावड़ा से वो मुलाकात करवा दी। While he was administered, he had that dengue, and he was admitted to one of the hospitals. During that time, कर्सी चावड़ा was introduced कि भाई नहीं नहीं तुम्हें ना इनसे भी मिल ही लो। She wanted to keep that record for later on. Not only कर्सी चावड़ा, वॉकर को ले लो, आप सूजन वॉकर को ले लो, and all those videos which Ria had जिसे धोखे से बनाए हैं, where you can see Sushant now, that is the time when Sushant came out of that hospital. Of course, there will be a sense of weakness in anybody, तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, नहीं कॉमन ह्यूमन बीइंग है यार, मतलब ही इज कॉमन मैन। तो उसको वो केपरी हाइट्स नहीं लेके गई, वो अपने घर लेके गई, एंड वहां पर उसने शी इज फिल्मिंग हिम इन हिज वर्स्ट स्टेट। मैं ये कहूंगा कि जब सुशांत थोड़ा बीमार लग रहा था तो इसने उसका वीडियो बनाया, एंड व्हेन सुशांत वाज कम्युनिकेटिंग विद HDFC बैंक, when Priyanka Kremani, her lawyer, was also present, and she recorded those conversations as well. So the intention right from the beginning has been to collect these things so that later on can be used to showcase depression, to spread that false narrative around. So it's okay. मैं तो हमेशा कहता हूँ कि it's okay to have, if somebody has an anxiety, that's perfectly fine. But अगर आप किसी के false narrative based on that anxiety ये बोलते हो कि uh, he had a depression and bipolar, that is incorrect, because uh, a person who has that must have a medical record, and I did not see any kind of
history or medical record of Sushant Singh Rajput. It's just like a subscription. And ऐसे तो मतलब काफी लोगों के पास होंगे. एक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है? Depression No, is something. Professor, there's one Yeah. more point, which is Okay. very important. See, Okay. forget, hypothetically, let's believe he had depression. Let's believe. Scientifically, I think a lot of people talk about psychology and all that. There's a very proven law about it in the medical field that a person who wants to kill himself if he's depressed will not be able to kill himself in the first attempt. 6 to 9 attempts are made when they get the courage, and then only they can kill. You guys can Google, it's in a lot of medical journals. You will find it about the suicidal tendencies के जब आप detail में पढ़ोगे, so you will find this is applicable to all the people who go through depression. But every depression doesn't end to suicidal thoughts. That is also very clearly mentioned there. No, अब you are चलिए हम बोलते हैं absolutely right. Yeah. हम Go ahead. बोलते हैं इनको डिप्रेशन भी था. चलिए हम बोलते हैं इनके सुसाइडिकल थॉट्स, लेकिन इससे पहले तो आज तक किसी ने नहीं बोला या किसी ने ये तो नहीं कहा इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था. तो दैट मीन्स दैट्स अ बोगस थ्योरी. Second, you're taking him after dengue, you're taking him to your place, and then he goes to corner store. आपको वहां पे काला जादू करने के लिए क्यों बुलाना है? Who believes in this generation काला जादू? And one simple thing, a person who's a Shiv Bhakt will never believe in all these things. It doesn't add up. Third thing, the videos, which I have maintained this from the very beginning. People say he looked a bit drugged up and all that. No, when you come out from dengue, you're prescribed some medicines for even sleep, or a common medicine for cold is called cetirizine. If you have it, you are drowsy. You look like you're drunk and out. Why is it not possible that the prescription which was prescribed by Riya Chakravarti's father had certain kind of drugs which made him drowsy all the time? The drug part came later. So we have to collectively see what is the possibility. Thank you, Professor. Now I'll go to listener mode, otherwise I'll keep speaking. Thank you. No, not at all, Sonia ji. You're most welcome, and very good points. Whatever you spoke, it totally makes a lot of sense. These are things people are not ready to address these things. कि अब मतलब वो कहते हैं कि नहीं यार, और ये समझना बहुत जरूरी है कि this cabal wanted to divert the attention from murder to depression, और डिप्रेशन पे ले जाओ, उसकी बात होगी, एसेसारियंस हैं, आपस में लड़ेंगे. स्पेसेस में मैं देखता हूँ जब भी कोई इसको एड्रेस करता है लोग टूट पड़ते हैं. अरे अरे, ये नहीं, वो नहीं, ये कैसे कह सकते, वो कैसे कह सकते. अरे भाई, सुनो तो सही. ट्राई टू अंडरस्टैंड where the topic is coming from, then only it makes sense. जैसे सोनिया रायना जी ने समझाया, nobody has ever said that that boy has depression. Very common sense is such an intelligent boy like Sushant Singh Rajput and the great Parambir Singh says that he was searching for painless death. 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि परमवीर की स्टेटमेंट को सामने रखते हैं, एंड लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट कि अगर हम 2 मिनट मान के भी चलें ये, देन व्हाई विल सुशांत चूज समथिंग लाइक a death by so much pain? अरे भाई, mind of science, mind of a person of a mind, a person of such intelligence, a person who has his own personal weapon. हम सब ने देखा है सुशांत अपने फार्म हाउस पे और अदर प्लेसेस शूटिंग करते हुए थ्रू अ गन. तो ही हैज हिज ओन पर्सनल वेपन एज वेल. तो मतलब इट इज नॉट इवन मेकिंग सेंस. तो यहां से ये सारी चीजें डिबंक होती है. एंड मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र था to spread, to malign the name of Sushant Singh Rajput right from the beginning. No disrespect to people who has depression
or anxiety. Sorry, or bipolar. No disrespect. Right from the beginning, 14 June 2020, these people have been started spreading this theory. अब मीमिया क्या लिख रही है? A student of, अरे एक पे रखो ना मीमिया. A student of physics and the pain of suspension while hanging. If he really looked up painless death, how can anyone explain this? बताओ भाई, बताइए. There is no explanation. A person of physics. There are only three jokers who are repeatedly saying the entire case hangs and goes by those jokers' statement. Nobody else saw the body hanging. एंड ऑफ कोर्स मैं तो कह रहा हूँ कि वो 60 घाट में इन्होंने काम करा है, चाहे वो पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, नेता हो, बॉलीवुड वाले हो. 60 घाट में इन सब में. हेलो ट्रुथ ट्रेलर जी, you're absolutely right. And Sushant was playing video game. That point was mentioned. Yes, right from the beginning. शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ कि लोग कह रहे ऑनलाइन गेम खेल रहा था सारी रात. अच्छा, लॉजिकली देखते हैं इसको. एक आदमी, कोई कहता है कि रात को सोया, तो एक आदमी जो रात को सोएगा वो ये डिसाइड करके सोएगा अब मैं सो रहा हूं, सुबह उठूंगा और मैं अपनी लाइफ ले लूंगा. इज इट मेकिंग सेंस? नो, एब्सोल्युटली नॉट. अब दूसरे दूसरे लॉजिक पे जाते हैं जो 2020 में आया. सुशांत सारी रात गेम खेल रहा था, तो मतलब सारी रात वो गेम खेल रहा था ये सोच के कि अभी मैं गेम खेलता रहूंगा, उसके बाद हाँ अब 9:30 बज गए हैं, सॉरी 8 बज गए हैं, अब मुझे ठंडा पानी पीना है, अब 9:30 बज गए हैं, मुझे पोमेग्रेनेट जूस और वो नारियल पानी पीना है, उसके बाद मेरा टाइम हो गया है, अब मुझे वो कुर्ते से अपने आप को अपनी जान ले लेनी. डज इट मेक सेंस? So if he's playing online game, there has to be a record, and that record would be there. The agencies would definitely investigate. सबने सेंसेशन अपने अपने हिसाब से क्रिएट करनी है. काफी लोग फेक विटनेसेस लेके आ रहे हैं. लॉट ऑफ पीपल गॉट दिस फेक विटनेसेस. A lot of SSRians have actually spoken to those witnesses, and those witnesses have said that हमें पैसे दिए थे बोलने के लिए. Can you imagine? This is what is happening. This is how people are creating some kind of sensation. And I ask myself, why? किस लिए? क्या क्या मिल क्या रहा है? Is there any kind of certificate that is being issued by the government of India, or any kind of trophy or prize money or something of that sort? No. We just want to know a simple answer: who killed Sushant Singh Rajput, bhai? And those who did it should be punished. बस, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं भाई. किसी को कुछ नहीं मिलना. बट ये है कि ठीक है, इट्स अ क्यूरियोसिटी, वी वांट टू डू इट. इसके साथ काफी केसेस सॉल्व होंगे. सिस्टम को थोड़ा चेंज करना है. वी आर डूइंग अ बिट, आर बिट. वी स्टार्टेड बॉयकॉट बॉलीवुड एंड लुक वेयर इट इज टुडे. आई डू नॉट से, मेरे से अगर सीधा पूछते जाते हैं लोग, कहते हैं हमने तो चेंज कर दिया बॉलीवुड. नहीं, वी बॉट अ डेंट in Bollywood, and that boycott Bollywood will go on till all those people
till all those people and the system changes. It's a collective effort. It is going to take time. It is not going to happen in a few months. No. But it is started. Change will come. We have made that dent. हम जो आवाज उठा रहे थे, हमारी आवाज जनता जनार्दन तक पहुंची, उन्होंने भी ज्वाइन करे, नेशनलिस्ट आ गए, काफी लोग आ गए। लोगों को अब समझ आ रही है। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है लोगों के दिमाग में बिठा देना ये the right thing, then why are we boycotting Bollywood? We're not against the Indian film industry. We are just against section of people who have hijacked the Indian film industry and made it Bollywood. And the kind of culture they have inside that Bollywood. Drugs, nepotism, trafficking, all that. Links with anti-national. So हम लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। बस हमारा वो काम है। चेंज अपने आप आएगा, अपने आप। This is, if I remember correctly, that Sushant was playing some game online, और टाइम देखिए आप, टाइम देखिए 9:23 AM on 14th June 2020. I do not buy this. अब ये मेरा ओपिनियन है, आपका हो सकता है। आप आई रिस्पेक्ट, अगर आप ये सोचते हैं कि वो खेल रहा था, बहुत अच्छी बात है जी। मैं नहीं मानता कि एक इंसान वो गेम खेल रहा है, उसके बाद वो जूस पीता है, उसके बाद उसको वो सोचता है ओके अब मेरा टाइम हो गया। ये सब कुछ प्लांटेड है। सुशांत की डेथ पहले ही हो चुकी है भाइयों बहनों। अगर मुंबई पुलिस का वो कमिश्नर द ग्रेट परमवीर सिंह, इसने कहा कि वो सर्च कर रहा था 10 बजे के आसपास, मेरे को सिंपल आंसर चाहिए उनसे ये कि अगर आप जो कह रहे हो आपकी बात लेके चलें, then why did Cooper Hospital did not write the time of death? मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए बस। Absolutely मीमिया, I saw that। टाइगर का फैन, ये भी जानबूझ के लिखा है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। टाइगर खान फैन, क्यों? Why would Sushant use this Tiger Khan fan when he was a fan of SRK? And we all know that. There is no denying about it. Sushant himself said that. तो फिर ये क्यों लिखेंगे बताओ? सी, वो मैं हमेशा कहता हूँ और आगे भी कहूंगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज करिए, थोड़ा सा। एक तरफ परमवीर कह रहा है कि वो सुबह डेथ सर्च कर रहा था, पेनलेस डेथ, और वो थ्योरी चला रहे हैं, ये नैरेटिव चला रहे हैं। तो फिर टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में क्यों नहीं मेंशन? अगर आपको सब कुछ मालूम है और आप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने अपनी लाइफ 14 सुबह को ली। आप समझ रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज वो पोर्ट्रे ये करना चाहते हैं कि उसने लाइफ सुबह ही ली है। तो फिर टाइम ऑफ डेथ मेंशन क्यों नहीं कर रहे आप? और जानबूझ के ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि रात को तो वो जाग रहा था, वो तो वीडियो गेम खेल रहा था। भाइयों बहनों, एक और चीज आप भूल रहे हैं, दोबारा याद दिलाता हूं। सिद्धार्थ पठानी की ये स्टेटमेंट थी कि रात को 1 बजे सुशांत मेरे कमरे में आए ये पूछने कि बुद्धा तू अभी तक जाग रहा है। उसका निक नेम बुद्धा था, है सिद्धार्थ पठानी का। बुद्धा तू अभी तक जाग रहा है, ये स्टेटमेंट सिद्धार्थ पठानी ने दी है। अगर मेरी कोई बात आप सहमत नहीं है, प्लीज
इमीडिएटली डू गूगल बाबा सर्च, पब्लिक डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब आप कड़ी से कड़ी अपने आप जोड़िए और देखिए सिस्टमैटिकली इन लोगों ने कैसी कहानी रची है। प्लानिंग, कहानी इसे कहते हैं। एक तरफ वो कह रहा है रात के 1 बजे वो मेरे कमरे में आए। ये सब दिखावा है, मतलब एक आपके सामने ना एक इल्यूज़न, एक कहानी, ताकि आप कहें ओहो! सुशांत तो उसके कमरे में रात के 1 बजे गया था, इसका मतलब जो भी हुआ वो 1 बजे के बाद हुआ। दूसरी तरफ अरे! वो तो गेम खेल रहा था। अच्छा, गेम खेल रहा था? अब कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, वो रात को सो गया था, सुबह उठ के साढ़े 9 बजे के आस-पास या 9 बजे के आस-पास वो गेम खेल रहा था। अच्छा, कमाल है यार! जो आदमी वो लोग कह रहे हैं कमाल वाले डिप्रेशन में था, वो रात को सो जाता है और उसको नींद भी आ जाती है और सुबह उठ के वो गेम भी खेल रहा है, वो हँस भी रहा है और वो कह रहा है कि हाँ, अब मेरा टाइम हो गया, अब मैं पेनलेस डेथ सर्च करता हूँ। कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी। महाराणा का भक्त says, I forgot who said, but someone said that his body was cold. नीरज ने कहा था भाई। If all this is true, can someone explain how the body fell cold? पहली बात, जिस कमरे में महाराणा जी, जिस कमरे में सुशांत की बॉडी मिली, उस कमरे में एसी फुल पावर पे चल रहा था। चलिए, इस बात को हम एक तरफ रखते हैं। अब आप किसी भी मेडिकल इंसान से, किसी भी डॉक्टर से, किसी भी हेल्थ वर्कर से आप ये पूछिए कि जब किसी की डेथ हो जाती है, तो इमीडिएटली क्या उसकी बॉडी ठंडी होती है? क्या होता है द प्रोसेस? आप यू विल बी शॉक्ड टू नो आफ्टर सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो ठंडी पड़ जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड में बॉडी सुशांत की तब थी बिकॉज़ हिज हिज बॉडी वाज़ फॉर वन ही वाज़ ऑलरेडी डेड, फॉर टू द बॉडी वाज़ केप्ट एट अ प्लेस वेयर द एसीज़ वर वो फुल ब्लास्ट पे थे। एंड दैट इज़ व्हाई आप मॉर्चरी में भी देखेंगे द बॉडीज आर केप्ट ऑन इन डीप फ्रीजर्स। कभी हम पार्थिव शरीर को घर पे भी लाते हैं किसी के, तो नीचे बर्फ की सिल्लियां होती हैं। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। हाँ, ये क्या है? एक्सप्लेनिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, सिद्धार्थ सेड he came to my room on the 13th night at around 1 a.m. and say, thank you मीमिया, thank you for finding this। देखिए भाइयों बहनों, हम जो भी बात करते हैं, जो भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स लॉजिक, सीधी बात, नो बकवास। जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने और आपस में डिस्कशन। बुद्धा, यू हैवंट स्लेप्ट, व्हाई? वही देखिए जो मैंने बोला था, बुद्धा आप सोए नहीं, क्या हुआ? आई आस्क्ड हिम व्हाई हैवंट यू स्लेप्ट एंड ही सेड आई एम जस्ट गोइंग ऑफ टू स्लीप। We wished each other good night. The next morning, when I went down, Keshav told me that sir is not opening the door. Change of statement, bhaiyo behno. Keshav told me that sir is not opening the door. When Keshav जो है, केशव तो गया ही नहीं था। अरे गड़बड़ कर दी सिद्धार्थ पटानी। केशव तो 9:30 बजे आया है, उससे पहले तो नीरज था। अरे पठानी क्या कर रहा है भाई? स्टोरी जिसने स्क्रिप्ट लिखी है उसके साथ बैठ तो जाता। एनीवेज, ओपनिंग द डोर, दिपेश and we tried to knock on the door to wake him up. Oh ho! We called the key maker, called his sister also immediately. We called the key maker, called his sister immediately. आप सोच रहे हैं बीच के इवेंट्स की जानबूझ के नहीं बता रहे,
She also left instantly. And when we opened the door, we found him in the state hanging. ओ भाई साहब, देख रहे हैं आप? इसको कहते हैं कहानी रचना। जिसको ब्रेक करना, भाइयों बहनों, जिसको ब्रेक करना बहुत ही कठिन है। बहुत ही, आज भी हम लगे हुए हैं कोई ना कोई पॉइंट लेके, और यहाँ पर एक और पॉइंट मिल गया हमें। एक वो नीरज का जो वीडियो दिखाया था उसमें से, जहाँ वो 1 घंटे की बात कर रहा है, और यहाँ पर एक और पॉइंट। इन सब ने मिल के कहानी रची है यार। एक धोखा, एक अद्भुत कहानी, अद्भुत कहानी मैं तो कहूँगा यार। ऑलमोस्ट लाइक जिसको बोलते हैं ना, टू गुड टू बी ट्रू। ऐसी कहानी, और ये प्लानिंग के साथ ही हो सकती है और नहीं हो सकती। मीमी वाज शोइंग समथिंग, क्या दिखा रहा था बेटा आप? हाँ, द सेम थिंग। आई एम जस्ट गोइंग ऑफ टू स्लीप। वाओ। नाउ वेयर इज, मतलब कॉमन है ना, एक ही जगह रह रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा सोचने पे थोड़ा मजबूर करता हूँ। अब आप ये देखिए, एक स्टाफ मेंबर अपने मालिक के यहाँ रह रहा है। उसी घर में रिटायर का मतलब अपने कमरे में जाने से पहले, ड्यूटी ऑफ करने से पहले आप क्या करेंगे? अगर आप या मैं रह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कहेंगे, "सर, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट और शुड आई कॉल इट ऑफ?" सिद्धार्थ पठानी, केशव, नीरज, सैम्यूल, 100% आप पूछिए अपने आप से। अगर आप होते उनकी जगह तो क्या करते? सुशांत से लास्ट पूछते ना कि सर, इज़ देयर एनीथिंग एल्स और शुड वी लीव? कॉमन सेंस है। जैसे हम लोग डिनर करने के बाद आपस में कभी दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, तो डिनर होता है, उसके बाद जब अपनी-अपनी जगह जाना होता है, ओके फाइन, सी यू, बाय, गुड नाइट, ओके आई एम लीविंग। दिस इज़ कॉमन सेंस। Truth trailer says, "But if he slept this late, was on drugs or medicines, medis लिखा है medicines, he woke up so early and went for a walk during the peak time of COVID." I don't know that. To be really honest, I don't know. There was a lot of speculation that Sushant wake up early in the morning. Of course, the information we have, yes, he used to. He's an early riser. He used to gaze at the stars, probably somewhere around 4 a.m. And then, his daily routine of exercise starts. But I am not ready to believe that he at 1 o'clock went to Buddha's room where they're used to communicate with each other on wireless devices, ladies and gentlemen. For all those who's now thinking that where is this coming from, please visit the Capri Heights time, where these guys themselves have given statement that we used to communicate through wireless devices or intercoms. आजकल के ज़माने में अगर मुझे भी, from my house is such that if I have to call somebody, or mobile उठाऊंगा और I'll just call, right? The helpers or anybody, if I want something, so I'll just call. क्या मुझे, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। It's I mean, not go to their personal rooms. I'm just,
having a discussion. These are thoughts which comes in my mind. So this is how they used to communicate with each other, wireless devices. बट वो होती है ना, एक कहानी आपके सामने रची गई है। आप अब उसी कहानी को अगर आप बार-बार देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने, हर एक के सामने एक टीवी है। आप टीवी पे एक सीरियल देखते हैं। पहले दिन देखते हैं आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, दूसरे दिन देखते हैं थोड़ा इंटरेस्ट बनता है, तीसरे दिन, चौथे दिन या दूसरे हफ्ते यू आर ग्लूड, चाहे उसमें नॉनसेंस दिखा रहे हो। बहू जो है वो रात को उन्हीं कपड़ों में सज-धज के सो रही है और सुबह उठ रही है मेकअप के साथ, एंड यू थिंक वाओ! बिकॉज़ बिकॉज़ बाय दैट टाइम यू गेट एडिक्टेड टू दैट स्टोरी व्हिच इज़ सर्कुलेटिंग। आपकी आदत बन जाती है वो देखने। सेम लॉजिक अप्लाइज कि जब आप कोई कहानी सुनते हो और बार-बार एक ही चीज़ दोहराई जाती है, आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। सुशांत के केस में भी यही हुआ। इन्होंने they throwed several stories, several narratives because they wanted that ये चीज़ लोगों के दिमाग में बैठ जाए, और काफ़ी लोगों के दिमाग में बैठ गई। काफ़ी लोगों के दिमाग। उनमें से कुछ लोग हैं जो सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई बात, मुद्दा यहाँ पर ये है कि सुशांत की हत्या किसने करी, और आप बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। मुझसे भी कोई अगर बात करता है ना, तो मैं कहता हूँ प्लीज़ डोंट गेट दिस टॉपिक। आई वांट टू नो हू किल्ड सुशांत सिंह राजपूत, हू मर्डर्ड हिम। आई डोंट वांट टू नो कि वो कभी उसको एंग्जायटी थी या ये था। ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और मेरे को पता भी नहीं करना। मेरे को तो ये पता करना है कि उसकी हत्या किसने करी भाई। इट्स दैट सिंपल। Anything else we have in store? Any any point? Okay. Neeraj told the police what Sushant ate in the morning. अरे 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 क्या खाया? पहली लाइन पे ही पकड़ लिया, क्या खाया? मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों की स्टेटमेंट है और वो भी जानबूझ के है। जानबूझ के है, और इसी पॉइंट को मैं ट्रेलर ट्रुथ के पॉइंट के साथ मिक्स करना चाहता हूँ कि हमें क्या पता उसको थोड़ा नशीली चीज़ दे दी हो मिला के, और वो दिखाया नहीं गया हो जानबूझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज told the police what Sushant ate in the morning and how he locked his room after a few hours. देखा? What he ate in the morning और after a few hours, ये कौन से few hours हैं जिसकी बात कर रहे हैं ये? कब? 9:30 बजे तो केशव गया था पूछने, 10 बजे तक तो फोन आ गया था दीदी का। तब तक तो इनके अकॉर्डिंगली दरवाजा बंद था। ये फ्यू आवर्स कौन सी बात कर रहे हैं ये? दीज यस, दीज आर द कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स rightly flashed by Mimia. On June 14th, I woke up around 6:30 a.m. as always and went to walk the dog. I returned at around 8 a.m. Then I cleaned the room upstairs and was cleaning the staircase. Sushant sir came out of his room, asked for chilled water. When I served him water, he drank the water there. He asked me if the hall was clean and smiled and went back. After that, around 9:30 a.m., I was cleaning the hall. I saw Keshav, the cook, taking bananas, coconut water, and juice to sir's room. When Keshav came back, he said sir only had coconut water and juice. आपके सामने
Explaining the sequence of events, Siddharth said, he came to my room on the 13th at, see, Buddha, you haven't slept. Why? सामने है आपके, everything. What is not written here is, and what is spoken by Keshav is, that according to him, he took those juice and coconut water, and Sushant said कि केले रख दो, ये मैं बाद में खाऊंगा. ये भी कहा है केशव ने in one of his statements. So now all we need to do is we need to carefully see all their statements. और ये statements कैसे देखेंगे आप सारी statements जैसे कुछ भी आता है आप कोई पेपर पे लिखना शुरू कर दीजिए और उसके बाद आप जब कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा ओ भाई ये तो कहानी बना रहे हैं, 13 रात से ही कहानी बना रहे हैं. मुझे एक बात बताइए, ये सिद्धार्थ पठानी ने 1 बजे का टाइम ही क्यों कहा? क्योंकि सुशांत केम 1 AM इन माय रूम. इसका मतलब उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं. आप तो एक ही घर में रह रहे हैं ना. इसका मतलब 1 बजे से पहले, रात के 1 बजे से पहले आपकी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई सुशांत से. इसके बावजूद कि आप लोग एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में हैं. कुछ तो हुआ होगा भाई. सुशांत अपने कमरे से बाहर आया होगा तो 13 को, कुछ मांगा होगा, कोई काम होगा, कुछ कहा होगा. समथिंग, नथिंग. पकड़े गए ना. देखा. Why only 1 o'clock at night? Why not कि हाँ जी, मैंने सुशांत को 9:30 बजे देखा, वो बाहर टहल रहे थे. या फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये फाइल दे दो या ये चीज दे दो या he told me this. Anything. अगर किसी के पास कुछ है तो प्लीज मुझे डीएम कर दीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं मिला और है भी नहीं और होगा भी नहीं. बिकॉज 13th late night or 14th early morning, he was already murdered. Otherwise, please explain me. 3 बजे के बाद, दोपहर के 3 बजे 13 जून 2020 के बाद सुशांत क्या कर रहा था, कोई मुझे बता दे और विद प्रूफ बताए प्लीज. प्लीज किसी के साथ कम्युनिकेशन हो, नीरज, केशव, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पठानी, किसी के साथ कुछ. और ऐसा हो सकता है भाइयों बहनों, मैं आपसे आप अपने आप से पूछिए, अगर आप उस माउंट ब्लैंक के उस अपार्टमेंट में होंगे, इज इट पॉसिबल कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई इनके बीच में? इट्स नॉट पॉसिबल गाइस. इट्स नॉट, जस्ट नॉट पॉसिबल. Just not possible. When so much staff is there and you are a superstar, there are a lot of things happening in your life. Communication back and forth. आपने रखा, एक बात बताइए, इन जोकर्स को रखा क्यों था सुशांत में? किस लिए? Obviously, because जब एक इंसान पे, एक सुपरस्टार पे इतना ज्यादा काम होता है, then he is obliged to keep certain people who can take care of manage his work. नीरज का अपना काम था, केशव का अपना काम था, सैमुअल मिरांडा का अपना था, सिद्धार्थ पठानी का अपना था. And since the three of them, Samuel never used to stay there. सैमुअल को अगर साइड पे रखें तो 3 जो हैं वो उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि भैया आखिर सुशांत के साथ 3 बजे के बाद क्या हुआ. सिर्फ एक स्टेटमेंट आई नीरज की तरफ से कि उन्होंने मैंगो जूस मांगा, बस.
Now ask yourself, is it possible? I don't think so. मेरे को नहीं लगता. Now Mimia Salgaonkar says one important confession video pending. Play करो बेटा. Play. है और वो फांसी से नहीं मरा. कैसे इतना इतना यकीन कैसे है आपको? जैसा है कि फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होगी. फांसी लेगा तो वाइडी बॉडी रहेगी. बैंड्रा वाली जो पुलिस है उसको ही मालूम है. हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है, ये मर्डर ही था. और जो निशान थे वो एक सुई का निशान था, गले पे वो निशान था. कितने निशान थे ऐसे? कितना मतलब क्या इसके टोचा निशान हुआ? हो गए 15 या 20 निशान थे. और एक यहाँ पे कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था. अच्छा. खून नहीं था, वो लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है. जब अपन हिलाए थे तब वो निशान निकले गया था उससे. वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी. मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था. जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी. कैसे टूटी थी? मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी. जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी. डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ पूरा मुड़ा हुआ था. रिया चक्रवर्ती जो आई थी वो आके उसने, जब एक आदमी था और एक लंबे बाल वाला था, उसने मेरे को बोला था आप दिखा सकते हो क्या बॉडी? मैं बोला दिखा दूंगा, पहले आप उनको कॉल करिए. जो उनका कोई दोस्त था वो जो कॉल पे था, फिर उनसे बात हुई थी, मैंने दिखाया था बॉडी. उसने माफी मांगी थी और सब कुछ गवाह कुछ बोल रही थी. उसने मेरे को बाहर भेज दिया था. वो जो आदमी व्हाइट टी शर्ट पहना था, मास्क. कितने मिनट तक अंदर थे? 25 मिनट तक वो अंदर थे. अच्छा. 25 मिनट तक. और वो माफी मांग रही थी. आपको सुनाई दी थी वो माफी? क्या किस तरह से शब्द थे? सॉरी मेरी जान, सॉरी ऐसा बोली थी. एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है. और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं. हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते. हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी. फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी. खाली यहाँ निशान थे सीने के ऊपर, पकड़ना धोना, पैर के ऊपर निशान थे. और ये तलवे के नीचे कुछ सुइया चुभाते वो निशान थे. तलवे पर भी निशान थे? कितने निशान थे उसमें? 3-4 निशान थे हर दोनों तलवे पे. तो मतलब गड्ढे नजर आ रहे? गड्ढे नजर आ रहे. सो भाइयों बहनों, ये वीडियो था इनिशियली जो मैंने बात करी थी, दैट अपार्ट फ्रॉम रूप कुमार शाह देयर वाज अनदर अटेंडेंट, कूपर अटेंडेंट. ये वो आदमी है जो जिसने 2020 में ही कन्फेशन कर दिया था इसका. और ये इसने भी चीख चीख के कह रहा है कि भाई टांग टूटी हुई है. But he was not part of the postmortem team. But he overheard the doctors, वो कहते हैं बड़े डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे थे that ये केस तो मर्डर का है. ये वो लोग हैं जिनका रोज का काम है. ये खुद ही बोल रहा है बॉडी सफेद हो जाती है या पीली पड़ जाती है, बिकॉज ये लोग देख के पहचान लेते हैं. ये लोग देखते ही तुरंत, इस आदमी ने खुद ही कहा, लिगेचर मार्क देख लीजिए या टांग टूटी हुई है. ये भी यही बोल रहा है, रूप कुमार शाह भी यही बोल रहा है. Everybody is stating, except for all those people who are trying to cover up this brutal murder. All the facts are in front of you, in front of us. And that is why it's a collective effort, जहां पर हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं और हम लोग आवाज उठाते हैं सुशांत के जस्टिस के लिए, in whatever capacity anybody can do. The entire case is based on these facts and logic. The entire case. आप इस केस को किसी भी एंगल से देख लीजिए. इवन इफ यू वांट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, यू कैन डू दैट. मैंने बहुत कोशिश करी फाइंड आउट करने की कोई और एंगल है. आई कुड नॉट फाइंड. इट्स क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट कॉमन. ये आप देख सकते हैं सुशांत
फज के साथ खेल रहा है। पीछे आप उसका गैजेट देख सकते हैं जिससे वो used to gaze at stars in the morning, टेलीस्कोप। और ये देखिए, फॉर ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग ये कौन सी जगह है, ये माउंट ब्लैंक है, सी फेसिंग अपार्टमेंट। ऑफ कोर्स पेट्स वर अलाउड एट माउंट ब्लैंक, इट्स दैट सिंपल। अरे 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 वरुण जी, आप कमेंट कर रहे हैं। चलिए, अभी आपको आई थिंक मीमिया ने बाहर कर दिया। देखिए, ऑब्वियसली आप ट्रोल करने आए थे, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप ये कह रहे हैं कि मतलब चलिए जाने दीजिए, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ उसके बारे में। बट वी सेंसिबल, वी द सेंसिबल वुड ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड which any individual does in this movement. Here, I always, and let me remove we always appreciate the efforts which is put by the small girl child, which is Mimia Salgaonkar. मैं बार बार बोलना नहीं चाहता that about her issue, but we all appreciate, we are all with her in her hard work, dedication, and thank her for allowing us and giving us this platform to speak. सिमरन जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? Yes, I definitely want to say something here. I really don't understand ki what's so much issue. You know, God has given her a gift, and that's called intelligent brain, जो शायद मिस्टर वरुण के पास नहीं है, राइट? ये जो मेंटालिटी आपने मिस्टर वरुण अपने दिमाग में रखी हुई है कि वो बोल नहीं सकती है, इजंट इट फनी। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, मेरे से अब कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ ना सिमरन जी, वो क्या है कि कोई हैंडल है, उसने नाम वैसा रखा है, that handle wants us to take the full name and talk about it so that that recording can be taken from here and put it on social media so that to create differences between people. I completely understand because कोई ऐसा ही मतलब कोई पता नहीं मेरे को यार लोगों की थिंकिंग नहीं, कैसी है। अगर कोई बच्ची है जिसको स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके इस मूवमेंट को जोड़ने की आगे लेके कोशिश कर जा रही रही है, है। उसके पीछे एफर्ट्स नहीं देखेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, मतलब उसको ट्रोल क्यों करेंगे? द इंटेंशन इज नॉट टू ट्रोल हर, द इंटेंशन इज टू somehow create differences from people who are speaking on this particular channel, including Mimia Salgaonkar and the other people who are doing their YouTube or spaces. Well, we are not here to criticize anyone, any individual by taking their names. They are doing whatever best they can in their capacity. We are doing our bit in our whatever our capacity is. It is that simple. But at the same time, bhai, don't take us lightly. Don't take our kindness for granted. ठीक है, हम भी मतलब जवाब देने में उस्ताद हैं और बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। तो ये अपनी जो आप कभी कभी जो कमेंट सेक्शन में अपनी गुड फॉर नथिंग बेरोजगारी लेके आ जाते हो और कमेंट करना शुरू कर देते हो, ये मत करो।
It shows that how frustrated these people are in their lives and they want to get it on social media. इनको दूसरों को सता के शायद कोई mental peace मिलती होगी. Trust me, people are laughing at you right now and cursing you basically. So you don't want And to do that bad curse यार. बस yeah, मुझे इतना and ही याद था और कुछ नहीं. मैं सॉरी किसी का नहीं. प्रोफेसर, आप मैं नहीं बोलूंगी, मुझे पता है आपने मेरे को स्टॉप स्टॉप किया है कि मैं बिल्कुल नहीं गुस्सा करूंगी, मैं बिल्कुल रूडली नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ इतना बिना नाम लिए कहूंगी क्योंकि वो इंसान समझ जाएंगे कि जो काम वो लड़की कर रही है वो शायद हम और आप भी नहीं कर सकेंगे। एंड सेकेंडली, ये जो बातें आप लिख रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, डोंट वरी, उसको कोई असर नहीं हो रहा है। वो इतनी स्ट्रांग है ना कि आप उसके लिए कुछ भी बोलेंगे, उसे कोई असर नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कुछ, क्योंकि वो मुझे हर्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने उसे अपनी बेटी कहा है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी उसे कुछ कहे। वो मुझे कह रही है कि लीव इट, लीव इट, लीव इट, लेकिन मैं नहीं लीव कर सकती क्योंकि ये मेरी बेटी का है। ठीक है प्रोफेसर, मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा, लेकिन प्लीज यहाँ पे आप अगर बात करने आए हैं तो बात कीजिए। अगर आप हमें प्रोफेसर जी को सुनने आए हैं, प्रोफेसर जी को सुनिए, कोई उल्टा सीधा रिमार्क्स यहाँ कोई मत लिखिए प्लीज। एंड and अरे दैट्स अरे ऑल। एक मिनट, मैं इसलिए ज्वाइन and हुआ on that क्योंकि note, अरे मेरे को पहले इंट्रोडक्शन तो देने दीजिए. आप ऐसे आ जाते. On that note, ladies and gentlemen, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और वो सच्चाई ये है कि ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डाउन कभी रॉन्ग नहीं होता. Ladies and gentlemen, please. ओए ओए ओए, ओ नहीं मैं भाई। इसीलिए आया था, मैं हाँ, बोल जी। रहा था इसलिए आया था क्योंकि ये जो नाम लेके जो आया है वो खुद वो नहीं है, वो आपस में भिड़वाना चाहता है, तो आप उसका नाम भी मत लीजिए और उसको हाँ, इग्नोर कर दीजिए। नो, हाँ, आई बिल्कुल. आई नो प्रोफेसर ने इसलिए मेरे को स्टॉप, क्योंकि प्रोफेसर को पता है मेरे बारे में कि हाँ, मैं कहाँ नहीं कैसी आपने आपने नाम लिया ना, तो इसलिए मैं तुरंत हाँ। आया स्पीकर पे, तो उसका नाम मत लीजिए, वो आपस में भिड़वाना चाहता है, वो इज एक्टिंग वेरी स्मार्ट बट ही इज नॉट स्मार्ट, सो लीव इट। ठीक है, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, मजा आ रहा है सुनने में, मैं जा रहा हूँ। मैं भी Thank you, चुप Dong हो sir. रही Thank you. Thank हूँ। you so much. थैंक यू डॉक्टर डॉन्ग। ओके सर, ओके मैडम। Absolutely. These are people who make sense. And exactly the same thing डोंग साहब ने आगे यही बोला. बिकॉज लोग समझते हैं ना, मतलब अब तो 2.5 साल हो गए, या तो ये होता है ना, हम 2020 में हैं. अब हम समझते हैं कि लोग कुछ गिनती के कुछ लोग शुरू शुरू में भड़का देते थे. हम भड़क जाते थे कि ठीक है यार, ओ अच्छा ऐसा हुआ, वो ऐसा है. बट अब वो नहीं चलेगा. अब the mindset is very clear that we are not here to break. We are here to build. We are here so that people are united together under one roof for a common cause. हमें यार जवाब चाहिए, हमें आपस में भिड़ना नहीं है. So there are section of people who are here to create those differences between people. Please stay very very safe and very cautious from these morons, I would say. बाकी जैसा मैं कहता हूँ, if somebody trolls you, just ignore. It's okay. It shows their mentality and their frustration, and and somehow they want you to stop talking about SSR. Their That is their motive. एक लड़ाई करवाना चाहते हैं SSRians के बीच में, और एक आप सुशांत के ऊपर बात मत करिए, आपका मोरल ब्रेक करना चाहते हैं. दिस इज देयर बेसिक पर्पस टू कम इन दिस मूवमेंट. कभी इन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं करा. आप कोई भी ट्रोलर आईडी उठा के देख लीजिए. They will never appreciate anybody. They will only curse. Curse, curse and curse. तो मैं तो कहता हूँ भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, और you know whatever frustration they have in their personal life, I give two hoots. But भगवान प्लीज हेल्प देम इन एनी वे. और अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए हमसे, आप हमारे पास आइए, हम आपको गाइडेंस भी देंगे.
कोई नौकरी वोकरी चाहिए वो भी दिलवा सकते हैं छोटी मोटी, उसकी भी मदद कर देंगे. But please do not disrupt a pious movement like this with your ugly thoughts. मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा बोलता नहीं उसके ऊपर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं दे सकते भाई या बहन, जो भी है, बिकॉज आई ट्रीट एवरीबडी इक्वल. I have, if I want, I can give it back also, but I just want to make this platform, this movement as clean as possible. But अगर बात अगर उस पे आ जाती है तो फिर जवाब भी वैसा ही मिलेगा. So it was a great session today, Simran ji and guys. We had a great time talking about various aspects about politicians, those bureaucrats, Bollywood, these jokers, the home stuff, and we had a good discussion on the case. So I would say, I would just ask you, Simran ji, अगर आपके पास कोई और, you would like to discuss any other point, or should we call it off for today? I don't have any point prophecy for now. I think it's already like more than 2 hours, so I think we'll wrap up. I mean, it's good to wrap up now. So, मेरी तरफ से thank you so much once again for the wonderful, the good session and very good information you have given us today, especially to me. And I appreciate the patiently you explain everything, and the way you explain, the way you talk is I'm speechless actually. I don't have a word how to explain how I feel when I listen to you, like, and I feel so proud कि मेरा भाई इतने अच्छे से सब कुछ समझा रहा है, जो अब even though in spaces we have talked a lot about Sushant case, and every other day हम लोगों ने जो spaces करी हैं या हम बाकी spaces में भी जाते हैं, sometime the things goes on top of my head, लेकिन जब आप समझाते हैं तो अब समझ में आती है कि yes, this is what happened and this is of course वो मीडिया में भी है बातें, ऐसा नहीं कि मीडिया में नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत थिक हूँ व्यूअर्स. एक चीजें होती हैं जो some of the things like, क्योंकि now I understand many Hindi words, पहले नहीं समझ आती थी, तो it's I can understand and I'm getting it so well. अब मुझे और भी अच्छे से समझ आ रहा है ये केस. So thank you so much. I really appreciate for all your effort and good session. So thank you, Mimia, and thank you, Professor G. Thank you, Dong, and all the viewers. Good night. Har Har Mahadev. Justice for Sushant Singh Rajput. Thank you. Thank you, Simran ji, and all. I would say that the entire thing goes to Mimia Salgaonkar, who pushed me to actually come on the platform and speak about Sushant Singh Rajput case, Disha case, and have a healthy debate. So the entire credit I would like to give to Mimia Salgaonkar on this. तो अच्छा लगता है when हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं and we have a debate. So I would like to thank you also, my dear sister Simran, that you come and appreciate us. You come with your valuable viewpoints, very interesting points. Like to thank Sonia ji, who came today and which brought a lot of sense with her point of view, and also to Dr. Dong, who came for a limited time but gave a very sensible point. And to all the viewers who are watching, कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे कि कोई ऐसा पॉइंट है
जहां पर आपका विचार थोड़ा अलग है, तो प्लीज उस विचार को कमेंट सेक्शन में या लाइव पे आके उसको बयान करें। हो सकता है, देखिए, हम भी ह्यूमन हैं, वी ऑल्सो टेंड टू मेक मिस्टेक्स। कभी किसी का नाम गलत ले लिया या कोई पॉइंट गलत बोल दिया, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, प्लीज फील फ्री to comment, come on live, and speak your heart out. Nobody is going to judge you. As far as things are done in a respectful manner, uh, there is no way that anybody who is going to comment or disrespect you. And this is my word to each and every viewer who's watching. So thank you so much, viewers, for joining. And I think Mimia had something to lighten up the mood. So Mimia, you want to cheer us and change our mood? Please go ahead. ये क्या लिखा है? Anyone wants to join? Please do. We are open for discussion. We never judge. It's always simple. It's always simple. We complicate things. Good morning, all of you. This is Nuraisha Tabassum, and I am the student of St. Michael Blind School, Ranchi. It's my honor to represent my thought in front of you. As we all know that we all are gathered here to celebrate the birthday of a legendary actor, the one and only Mr. Sushant Singh Rajput, who is no longer in this world, but he will always be in our heart. He was a great personality for all of us. So today I am going to share with you our experiences when we met him. Few years ago, in 2018, he visited our school to meet us. It was a great opportunity for us because we never thought of this one day. A great actor, Mr. Sushant Singh Rajput, will come in our school to meet us. It was like a dream which come true. We enjoyed a lot. He was a kind-hearted person. And I want to share with you one more thing. He gave us his autograph. And really, when I see that, I remember all the moments which we spent with him. It was a beautiful moment for all of us. And he promised our principal, Mrs. M.T.P. Agarwal ma'am, he wanted to do something for us. He wanted to do something for usually impaired students of St. Michael Blind School, Ranchi. But he couldn't get time. He is no here to complete their commitment. But we miss him. And today, we give him a big tribute from our heart. And we miss him a lot. We love him a lot. Thank you. Great. It's really nice when, these are, if I'm not wrong, St. Michael School के बच्चे हैं, School for Blinds. And these are children who met Sushant. Sushant wanted to do a lot for these children, and I think recorded by one of the Warriors SSRians, Nandini ji from Bangalore team, if I'm not wrong, and tremendous, uh, you know, good that when these when I see these children, this video again and again, it makes everybody very emotional. That look at these people who cannot see this beautiful world, yet they can feel the kindness, and that kindness was bought by Sushant. And that is why I say that when we talk about his legacy and making and moving his legacy forward, these are the kind of
things one should do in their respectful life. ऐसा कुछ करिए कि आप जब रहें या ना भी रहें, आपका नाम इनके दिलों में छप जाए. And this is exactly what Sushant has left behind. Ladies and gentlemen, it's been 2.5 years. Still, those people who have not seen Sushant with their eyes but felt him from the heart, these are the golden words which came out of their mouth. And this is pure love, absolute love, which comes out. आपके सामने है. So this is the legacy, what he has left and what we have to take forward. It is that simple. The school video is from NM. The school video is from Mr. Nilotpal Minalji, Nandini ji. I picked up the Methi River video yesterday. बेटा आप क्या लिख रहे हो? समझ नहीं आए. Okay, we got it. So the video is from Nilotpal Minalji and वो उनके हैंडल से लिया होगा और नंदिनी जी से, बैंगलोर टीम की हैं वो मेरे ख्याल से. And the other video she's talking about is the Methi River video that we showed yesterday. So on that note, yeah, we got it. Absolutely right. So on that note, Bhaiyo Behno, thank you so much for your time, your patience, listening to us. Another day, another session. We'll have a discussion on Sushant Singh Rajput, his case, his legacy. Tab tak ke liye, thank you and you stay safe. Goodbye. When the going gets tough, only the tough gets going. Sushant Singh Rajput chose you for a reason. You are his voice, his heart, his soul. Together, united, we are stronger than ever. Let's go and get justice for Sushant Singh Rajput.